Very happy to see her, sir, making a presentation today. As a student. As a yes. Anyway, I think we might start, right? अब जो और Yes, join ma'am. करेंगे वो join करेंगे, ठीक है? Okay, so everybody excepting Rishabh, we can all have our videos off, which all of you do, and we can all have our microphones on mute. That will give us much more bandwidth. So good afternoon, and I welcome all of you to the second in this session of doing research. This is a series which we have planned. Pichli baar we had a very nice presentation by Dr. Tulika Vadva, and this time I want to invite and welcome Dr. Rishabh Mishra. Dr. Rishabh Mishra has flown in as a hero from Nagpur yesterday, actually from Wardha where he teaches. And he took the flight from Nagpur and he came into Delhi yesterday, and that's why I was having that small exchange about his experience with him. So Rishabh did his MEd in CIE, and then subsequently he did his PhD with us, and he has been teaching at Wardha for how many years, Rishabh? Kitne saal? So I have completed 5 years. Okay, since the last 5 years. And prior to that, he also had a short innings of teaching in Vasant Valley School. Yeah. So, he has this spectrum of experience of teaching in school as well as in higher education. And he did a very good PhD. He is a social scientist by training, and geography is his dominant area of specialization. But of course, he has a very, very wide spectrum in which he works. And Rishabh is also very good at writing a lot of newspaper features and articles. And you can, see him very frequently writing on very topical issues in education, apart from all the research papers that he does. So, Rishabh, we have known you since the last, 10, 12 years? I think I've known you for the last 10 or 12 years, from the day you joined the MEd class. 10 years. 10 years. Yes, ma'am. हाँ, so ऋषभ, आपने तो बहुत बढ़िया एक PhD थीसिस करी थी, और आपकी जर्नी भी मैंने बहुत कुछ सीखा आपकी रिसर्च जर्नी से, और आपकी थीसिस के काम से भी बहुत कुछ सीखा मैंने. So I invite you today to share your whole. Oh, Sadhna has joined. Your student Sadhna has joined. She's just joined. Welcome, Sadhna. So I welcome you now, and I hand over the forum to you, and I look forward to your presentation. So yes, it's over to you, Rishabh. I will try my best. Yes, ma'am. Yeah. Shweta, you may switch off your video, please. Let's all go with video off. Yeah. करेंगी जो स्लाइड के ताकि हम इससे बात कर सकूं. हेलो मैम, स्टार्ट करूं मैम? Can everybody see the PPT? Please start. Yeah. तो सबसे पहले तो नमिता मैम को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ अपनी रिसर्च जर्नी, मैम के बिना पॉसिबल नहीं थी. मैम के साथ मैंने ये सीखा कि लाइफ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है रिलेशनशिप की और कम्युनिकेशन की. आप कैसे अपनी अच्छाइयों के साथ लोगों के बीच जीते हैं. और कहीं ना कहीं उनके साथ जो मेरा अनुभव था, CIE में जो मेरा अनुभव था, उसने ही मुझे रिसर्च की और आगे बढ़ाया. इसलिए जो मैं सबसे पहली बात कहना चाहूँगा कि जब हम B.Ed में पढ़ते हैं तो हमारा एक वाइडर स्पेक्ट्रम होता है. B.Ed में हमारा फोकस हर चीज़ में क्लासरूम इम्प्लीकेशन के लिए होता है. हम ये चाहते हैं कि हम कोई थियरी पढ़ रहे हैं तो उसको हम अपनी टीचिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इस पर हम बात करेंगे. लेकिन जब हम MEd में आते हैं तो हमारा फोकस थोड़ा थियरी ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाता है. थियरी को बेसिस पे इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और डिबेट्स करना, हम जैसी आदतें या एकेडमिक. मैं आगे बढ़ूँ मैम?
हाँ, उसको लेके हमारे भीतर एक ओरिएंटेशन आता है कि हम रिसर्च की ओर आगे बढ़ें। इसके बाद जब कुछ नहीं, आप बोलिए, कुछ हम नहीं MA बोलिए, प्लीज प्लीज प्लीज। के होते हैं, कई बार हम डायरेक्ट एमएड करने के बाद सीधे कई बार एक फील्ड एक्सपीरियंस के Rishabh, you are not audible. Hello, Rishabh. हम ये Hello, Rishabh. प्लानिंग करते हैं कि हमें रिसर्च करनी है। ऋषभ, आपका थोड़ा क्लियर, जी मैम, आवाज क्लियर नहीं आ आवाज आ रही है क्या? हाँ, मे बी यू शुड बी क्लोजर टू द माइक। अब आई मैम। जी जी मैम, मुझे एक मिनट दीजिए, मैं अपने ये सिस्टम से स्लाइड करूं ताकि फिर मुझे आसानी हो और अच्छे से कर सकूं। श्योर। हेलो। यस ऋषभ, अब सुनाई दे रहा है। हाँ मैम, जी आ रही है आवाज ना? तो मैम, मैं एक्चुअली मैं स्लाइड्स तो मेरे से हो नहीं पा रहा है, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मैं तुलिका दी कोई लिखता हूँ, दी थर्ड स्लाइड। You can keep telling her to move the slides, Rishabh. She'll move them. Yeah. जी। तो मैम, जब हम अपनी एमएड पूरी कर चुके होते हैं और हम ये सोचते हैं कि अब हमें अपनी पीएचडी में जाना है या एमफिल में जाना है, उस समय हमारे पास क्या होता है? उस समय हम सबसे ज्यादा एक थियरी से पूरा हमारा दिमाग भरा होता है और उसमें से कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके साथ जैसे कहते हैं हम बहुत क्लोज फील करते हैं कि हमें क्रिटिकल पेडागोजी में, हमें कंस्ट्रक्टिविज्म में, हमें जो कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्सेज हैं, जो हमने रिसर्च आर्टिकल पढ़े होते हैं या जो हमने रिसर्च ट्रेंड समझा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके साथ हम काम करना चाहते हैं। लेकिन इस समय आपके पास क्या नहीं होता, आप ये नहीं जानते हैं कि जिस थियरी को लेके आप इतने एक रोमांटिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, उसका एक्चुअल फील्ड बेस्ड डेटा क्या है, फील्ड में क्या हो रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में एमएड के बाद या कुछ थोड़े अनुभव के बाद आप एक एडमिशन के लिए एसओपी तैयार करते हैं और उस एसओपी को आप डिफेंड करते हैं। जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उस एसओपी को अगर आप देखें तो उस एसओपी में क्या रहता है, तमाम उस समय की जो कंटेम्प्रेरी थियरीज होती हैं और जो पहले की थियरी के क्रिटिसिज्म होते हैं, कंटेम्प्रेरी थियरीज होती हैं, उनके जो गैप्स होते हैं या जो उससे आपकी इंसाइट निकल रही होती है, उसको लेकर आप कुछ काम करना चाहते हैं। उसके साथ साथ आपका जो एक रिसर्च का ओरिएंटेशन होता है, चाहे वो क्लासरूम को लेकर हो, चाहे आउट ऑफ द क्लासरूम को लेकर हो, चाहे किसी पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप को लेकर हो, आप कुछ एक ऐसी रिसर्च प्लान करते हैं। इस सिचुएशन में आपके पास एक बहुत बढ़िया थियोरेटिकल समझ और रिसर्च की ओरिएंटेशन होती है, जिसके बेसिस पे आप एक पीएचडी की शुरुआत तो करना चाहते हैं और हम उसके लिए एस्पायर भी करते हैं कि हमें पीएचडी करना है, हम एडमिशन भी ले लेते हैं। यदि उस समय के आप अपने प्रपोजल को देखें या आप अपने मोटिवेशन को देखें तो आप पाएंगे कि आपकी बातचीत में वो सारे नए नए शब्द होंगे, नए नए जार्गन्स होंगे जो पिछले 4-5 वर्षों में शिक्षा में आए हैं और जिनके द्वारा आप एजुकेशनल प्रोसेस को
समझने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रिसर्च मेथड्स में जितने भी नए ट्रेंड्स आए हैं, आप उनको लेकर भी बहुत उत्सुक रहते हैं कि हमें हर नए ट्रेंड के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। एडमिशन के बाद कोर्स वर्क के दौरान आप मेथोडोलॉजी और लिटरेचर रिव्यू के द्वारा, जो आप मेथोडोलॉजी क्लास और लिटरेचर रिव्यू का जो प्रोसेस होता है, या जो आप कोर्स वर्क के दौरान एक पेपर पढ़ते हैं, वह आपकी इस एस्पिरेशन को बहुत मजबूत करने का काम करता है। मतलब आपको ऐसा लगने लगता है कि जो अब तक की रिसर्चेज हुई हैं उनसे आप एक बेहतर रिसर्च कर सकते हैं, उसको थियोरेटिकली और मेथोडोलॉजिकली बहुत व्यवस्थित तरीके से आप अपनी तैयारी को पूरी करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसके बाद एसओपी के बाद आप सिनॉप्सिस बनाते हैं। अब पहला सवाल आपके सामने खड़ा होता है, वेयर इज द लोकस ऑफ रिसर्च? आपकी रिसर्च का केंद्र कहाँ है, उसका लोकस कहाँ है? अगर आप कहते हैं कि वह आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में है कि मैंने ऐसा देखा, तो पर्सनल परसेप्शन, एक्सपीरियंस, बिलीफ्स के बेसिस पे आप रिसर्च को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे वो एक्सपीरियंस आपका एज ए टीचर रहा हो या किसी भी एक आइडेंटिटी के साथ जो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपकी रिसर्च के लिए एक आधार, व्यवस्थित रूप से स्वीकृत और मान्य आधार नहीं देता है। क्या फिर आप थियरी के बेसिस पे जो इनसाइट ड्रा कर रहे हैं उसके बेसिस पर आगे बढ़ेंगे? अगर आप थियरी के बेसिस पे जो इनसाइट ड्रा कर रहे हैं उससे आगे बढ़ते हैं, जैसा हम सभी करते हैं, जैसा मैंने भी किया, तो आपके सामने समस्या ये आती है कि वो सारी चीजें कृत्रिम, आर्टिफिशियल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने अपनी रिसर्च की शुरुआत की थी सिचुएटेड कॉग्निशन की थियरी को लेकर, और उसके साथ साथ मैंने ज्योग्राफी लर्निंग को जोड़ने की कोशिश की थी। तो मैंने जो भी लिटरेचर पढ़ा या जो भी मेथोडोलॉजी की क्लासेस ली, और उसके बेसिस पे जो मैंने अभी विदाउट स्कीमिंग थ्रू द फील्ड, just on the basis of theory and all the readings that I have read during my coursework and prior to coursework, जो मैंने अपनी तैयारी की उसके बेसिस पे जो बातें मैंने लिखी, जो आर्ग्यूमेंट्स मैंने दिए, जो कुछ भी तैयार किया, वह पूरी तरीके से एक कृत्रिम आर्ग्यूमेंट था। वो बहुत ज्यादा सैद्धांतिक था। सैद्धांतिक इस संदर्भ में था कि मेरे पास ढेर सारे ऐसे शब्द थे जो जिन्हें मैंने दूसरों से अपनाया था। आई हैव टेकन दोज jargons or those keywords from others, like I have taken word from some geographer like academic geography, everyday geography, children's geography. ये मेरे शब्द नहीं थे। ज्योग्राफी में जो रिसेंट रिसर्च हुई थी पिछले 5-10 सालों में, उनको पढ़कर उन शब्दों को मैंने अपनाया था। ऐसे ही सिचुएटेड कॉग्निशन थियरी के जो वर्ड्स मैंने ऑथेंटिक एक्सरसाइज, कॉन्टेक्स्ट, कल्चर में इंडिजीनियस नॉलेज को लेना हो, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन को लेना हो, तो मैंने उन्हें समझा था और उनके बेसिस पे कुछ कनेक्शन ड्रॉ करने की कोशिश की थी कि कुछ मैंने वहां से लिया, कुछ यहां से लिया, और इसके बेसिस पे मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं और एसओपी से सिनाप्सिस तक मैं पहुंचता हूं। ये यहां तक का जो काम होता है, आपकी जो एक सिनाप्सिस बनती है कि फाइनली आपने एडमिशन लिया और अब आप एक सिनाप्सिस बना के तैयार करते हैं कि जिसके बेसिस पे मैं रिसर्च करूंगा। ये काम मेरे लिए भी बहुत आसान था। ज्यादातर ये डेस्क वर्क ओरिएंटेड था, जिसमें मैंने रिसेंट आर्टिकल्स, रिसेंट रिसर्च ट्रेंड्स पढ़े, थियरी को क्रिटिसाइज किया और ये डिसाइड करने की कोशिश की, मार्क किया कि मेरा एरिया ऑफ रिसर्च क्या होगा। और यहाँ आकर ऐसा लगता था कि हाँ, कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है। अब लग रहा है कि ये काम आसानी से हो जाएगा, और ये फीलिंग आपको भी आएगी जब आप इस काम को करेंगे कि हमने एक वाइडर एरिया या वाइडर डोमेन से शुरू किया था। उसके बाद हम बार बार रेफरेंस देके बताते हैं कि फला रिसर्च ने ऐसा किया था, तो हम उससे अलग करते हुए ऐसा करेंगे, या इस तरह की मेथोडोलॉजी को हम यूज करेंगे, ऐसे टूल बनाएंगे। ये काम करके जब मैं नमिता मैम के पास और भारती मैम के पास, जो मेरी सुपरवाइजर थी, मैं गया, तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो लगभग मामला क्लियर है। इसके बाद हम अब तय कर लेंगे कि मुझे क्या करना है, और अगले कुछ समय में, अगले 5-6 महीनों में जो मैंने अपना प्लान चार्ट आउट किया है, उसके हिसाब से डेटा कलेक्ट कर लूंगा, उसके हिसाब से बातें करूंगा और फिर थीसिस को लिख डालूंगा। और इस पूरी एक्सरसाइज के बाद, जो कि डेस्क वर्क थी, थियरी लेडन थी, फुल ऑफ जार्गन्स थी, उसके बाद तुलिका दी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद मैं कहाँ पहुंचा? उसके बाद मेरे पास ये 4 चीजें थी जो मेरे सिनाप्सिस में बहुत क्लियर कट दिख रही थी, और आप में से जो कोई भी इस प्रोसेस में गुजरेगा वो भी यहाँ पर पहुंच रहा है। रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी और राइटिंग ऑफ द रिसर्च का आपके पास एक प्लान होता है। मैं सीआई में था या आजकल वर्धा में हूँ, और देश के तमाम जगहों पे जब हम रिसर्च के बारे में सुनते हैं
तो मैं बहुत मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं, मेरी रिसर्च जर्नी तो वैसी नहीं रही। आप भी कई बार फेस ऐसा करते होंगे कि हम बहुत जल्दी इन सारों चीजों को फ्रीज कर देना चाहते हैं कि अल्टीमेटली मेरा रिसर्च क्वेश्चन ये होगा, मेरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव ये होगा, मेथोडोलॉजी ये होगी और मैं इस तरीके से अपनी रिसर्च को लिखूंगा। या मेरे हिसाब से अगर मैं इसको कहूँ, जो मेरा theoretically या freezing these components of your dissertation, your thesis or your research is not good for any researcher. क्यों? क्योंकि अभी तक आपने जो कुछ भी तय किया है उसका वास्तविकता से लेना देना नहीं है, और आप अगर केवल पहले से सोची गई बातों को या पहले से हुई रिसर्च में जिन बातों को कहा गया है उसके आधार पे कोई एक बनाते हैं, सवाल बनाते हैं, उसका जस्टिफिकेशन देते हैं, उसके लिए मेथड बनाते हैं, उसके लिए टूल बनाते हैं, निश्चित रूप से आप रिसर्च तो कर ले जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए, ऐसा मेरा अनुभव रहा है कि इस तरीके की प्रक्रिया में आगे बढ़ने पर आप जो वहां वास्तव में हो रहा है, जो वास्तविकता है, उसकी व्याख्या नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आपके दिमाग में जो दिखने की इच्छा है, आप जिस चीज को खोजना चाह रहे हैं, केवल उसी चीज को खोजकर आप वापस चले आएंगे। और यही घटना मेरे साथ भी हो रही थी। मैं लगातार रिसर्च के दौरान, नमिता मैम उस समय मुनीरका में रहा करती थी, तो काफी लंबे समय तक मेरा मैम के साथ कार में आना जाना हुआ करता था, बहुत इनफॉर्मल डिस्कशन रहा। इसके अलावा 6 बजे के आसपास मैम सीआई से निकला करती थी और रेगुलर बेसिस पे मैं 5 से 6 मैम से मिलता और बहुत सारा डिस्कशन होता कि मैम मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, तमाम। और मुझे आज मैं ऐसा लगता है कि मैम ने मुझे खूब सुना, मतलब कि मैं रोज कोई ना कोई नया आइडिया, कोई आज आइडिया मैं पिछले 5 साल पीछे जाके कहूं तो 2, 4, 10 लेख पढ़ने के बाद, रिसर्च आर्टिकल पढ़ने के बाद लगता था कि ये गैप है, इसको ऐसे ठीक करो, ऐसे। और जो चीजें बनाई थी वो बहुत बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल थी। उनको देख के अगर मैं आज की डेट में जो मैंने सिनाप्सिस सीआई में जमा किया था कोर्स वर्क के बाद, अगर मैं आप उसको देखें तो आपको भी लगेगा कि यह तो पूरी तरीके से थियोरेटिकल आइडिया। मान लीजिए मैंने पहला रिसर्च क्वेश्चन बनाया कि बच्चे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, तो ये वास्तविकता से बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि ऐसा मैंने बहुत से रिसर्च आर्टिकल्स में पढ़ा और फिर मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि विद रेफरेंस टू पर्टिकुलर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इस तरह की रिसर्च नहीं हुई है, और मैं इस बेसिस पे ये आर्ग्यू कर रहा हूं कि मुझे ऐसी रिसर्च करनी चाहिए, इसलिए मेरा ये रिसर्च का क्वेश्चन है। अब आप देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि और रिसर्चर्स कहते हैं, मान लीजिए डेविड स्कॉट कहता है कि इस प्रकार की रिसर्च नहीं हुई है, बच्चों की ज्योग्राफी की समझ बड़ों की ज्योग्राफी की समझ से अलग होती है। यह डेविड स्कॉट की राइटिंग में मैंने पढ़ा। फिर मैंने ये कहा कि इंडिया में इस टाइप की रिसर्च नहीं हुई है, तो इंडिया में हुई रिसर्च की राइटिंग में मैंने इस बात को खोजा। फिर राइटिंग में ही मैंने ये कहा कि मैं इस बात पे रिसर्च करूंगा। सो कोई यहाँ वास्तविकता नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर थियरी ने एक बात को कहा, उस पर्टिकुलर थियरी के बारे में कोई ठोस रिसर्च मुझे लिखित रूप में नहीं मिल रही है, इसलिए मैं ये दावा कर रहा हूं लिखित रूप में कि मैं इस प्रकार की रिसर्च को करना चाहता हूं। फिर मेरी मेथोडोलॉजी भी इसी तरह कृत्रिम बनेगी कि अच्छा उसने इस तरीके से देखा था फलाने, जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि पॉल और कॉब ने अपने रिसर्च में क्लासरूम को ऐसे समझा था, या मान लीजिए अजय शर्मा ने अपनी क्लासरूम रिसर्च को ऐसे समझा था, या एथनोग्राफिक रिसर्च करते वक्त पद्मा सारंग पाणि ने ऐसे देखा था, तो मैं भी उसके आसपास, अर्थात यह मेरी खुद की समझ नहीं बन रही है, मुझे ऐसा अनुमान में लगा रहा हूं कि इस तरह की समस्या को हल करने के लिए जैसे इन रिसर्चर्स ने टूल का इस्तेमाल किया वैसा टूल मैं भी बना सकता हूं। तो ये पूरी तरीके से एक कृत्रिम प्रक्रिया मेरे अनुसार थी, जिसके बेसिस पे मैं रिसर्च तो कर सकता था, लेकिन वह रिसर्च किसी जेन्युइन क्वेश्चन को, किसी मतलब ओरिजिनल क्वेस्ट को नहीं एड्रेस कर पाती। तो इस समस्या के बीच में नमिता मैम के साथ जब मेरा डिस्कशन हुआ तो उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया। वो सुझाव ये था कि सबसे पहले मैं फील्ड को समझूं, एडमिशन से लेकर सिनॉप्सिस बनाने तक की जर्नी में मैंने थियरी को खूब विधिवत एक्सप्लोर किया कि कहाँ क्या नया लिखा जा रहा है, मेथोडोलॉजी में क्या एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, थियरीज क्या है, और रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन क्या है, खासकर सोशल साइंस को लेकर, क्लासरूम रिसर्च को लेकर। और इसके बेसिस पे जो मैंने सिनॉप्सिस लिखी वह उनकी, जिसे कहते हैं, उन पे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन था। माय सिनॉप्सिस इज लाइक अ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन
on a particular set of articles prevailing to my area of research, that is teaching learning of social science and children's understanding of geography, but it is not connected with the field reality. That's why Namita ma'am has suggested me to do it. तो ये स्काउटिंग टास्क कई बार आप नमिता मैम के मुंह से सुनते होंगे, और मेरा खुद का अपनी रिसर्च में ये अनुभव रहा है कि बिना इसके कम से कम मेरी रिसर्च उस तरीके की ना हो पाती जिस तरीके की रिसर्च को आज मैं देख रहा हूं, या जो उसका स्वरूप है, जिसके कारण मैम को या और भी जो लोग इसको देखते हैं कहते हैं हाँ ये अपेक्षाकृत एक अच्छी रिसर्च है। तुलिका दी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये तुलिका दी नेक्स्ट स्लाइड। तो ये बेसिकली ये स्काउटिंग टास्क क्या है जो जिसने मुझे अपनी पूरी रिसर्च को रिकंसेप्चुअलाइज करने का मौका दिया। आप ध्यान रखिएगा जो बात मैंने अब तक कही है कि मैं एक ऐसी सिनाप्सिस पे पहुंचा जो कि एक क्रिटिकल रिव्यू एंड रिफ्लेक्शन ऑन एग्जिस्टिंग रिसर्च लिटरेचर था, दैट इज नॉट कनेक्टेड विद द फील्ड, दैट इज नॉट कनेक्टेड विद एक्चुअल क्लासरूम प्रैक्टिसेस। सो हाउ टू टीप इन द एक्चुअल क्लासरूम प्रैक्टिसेस, कैसे मैं वहां तक पहुंचूं? तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें, आप देख रहे हैं कुछ ग्रीन है कुछ रेड है। हम सभी पढ़ते हैं, सभी रिफ्लेक्ट करते हैं, हम अपने पीयर ग्रुप के साथ डिस्कस करते हैं, अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करते हैं। बट बियॉन्ड दीज थ्री ग्रुप्स नमिता मैम हैज सजेस्टेड मी टू डिस्कस विद पेरेंट्स, स्कूल टीचर, स्टूडेंट्स एंड डिड सम क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस। ये जो चारों काम उन्होंने मुझे कहे, इसमें एक जो उनका बहुत बहुत क्लियर कट मेरे लिए संदेश था, मैसेज था कि आपने जो ये सवाल बनाए हैं, जो ये कृत्रिम सवाल जिन्हें मैं कह रहा हूं, जिन्हें मैं सैद्धांतिक सवाल कह रहा हूं, इन सैद्धांतिक सवालों को लेकर आप इनसे मत बात करिए। आप ये जो चारों समूह हैं जो आपको भारतीय कक्षाओं की, भारत में समाजी विज्ञान पढ़ने पढ़ाने की वास्तविकता के बारे में बताते हैं, आप इनको सुनिए, केवल इनसे बात करिए। और इनसे बात करने, इनको सुनने के दौरान आपके दिमाग में कोई वो जिसे कहते हैं ना रिसर्च में जल्दी वाला सैंपलिंग प्लान नहीं होगा कि हमारी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है या रैंडम सैंपलिंग है। जो मिले, जहां मिले, जैसे मिले, उसको सुनकर, उसको पूरा समय देखकर, उसका अवलोकन करके जितनी ज्यादा तरीके से आप उसको समझ सकते हैं, जानने की कोशिश करिए क्या कि वे सामाजिक विज्ञान के बारे में क्या सोचते हैं, वे क्लासरूम को कैसे समझते हैं, वो शिक्षा को कैसे समझते हैं। लाइक एक्चुअल एक बात यहाँ पर बताऊंगा कि हम लोगों के समय में जयश्री मैम हम लोग को फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पढ़ाया करती थी, और उनका बहुत बड़ा एप्रीहेंशन था कि एजुकेशन वाले जब कोई रिसर्च शुरू करते हैं तो केवल क्लासरूम की प्रोसेस को देखने लगते हैं। मैं भी कहीं ना कहीं वही करने जा रहा था। सम सेट ऑफ थियोरेटिकल क्वेश्चंस, प्री डिसाइडेड मेथोडोलॉजी एंड चूजिंग द डेटा, एक्चुअली नॉट एक्सप्लोरिंग बट चूजिंग कि मैं क्या चुनना चाह रहा हूं, उसको चुन के मैं अपनी थीसिस लिख दूं। लेकिन जब मैंने ये स्काउटिंग टास्क शुरू किया और पूरा जिनके साथ मैं बात कर सकता था, लगभग 3-4 महीने तक ये मेरा प्रोसेस चलता रहा, जिसमें मेरे पास कोई रिसर्च डिजाइन नहीं थी, कोई सवाल नहीं था, बस मन में एक क्वेस्ट थी कि बच्चे सामाजिक विज्ञान को कैसे समझते हैं, अध्यापक सामाजिक विज्ञान को कैसे पढ़ाता है, और हमारे क्लासरूम में क्या प्रक्रियाएं होती हैं। इसको लेकर मुझे जितने भी पॉसिबल ग्रुप्स थे, चाहे वो जहां कहीं के भी रहे हों, मुझे उनसे बात करनी थी, उन्हें सुनना था, उनके जो वो कर रहे थे उसे देखना था। तुलिका दी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब इस दौरान मैंने क्या किया, मैंने पूरा मतलब सोशल साइंस टीचर्स के साथ इनफॉर्मल इंटरव्यू किया, सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू भी आप कह सकते हैं, जिसमें मैं उनको ये बहुत नहीं बताता था कि मेरा टॉपिक क्या है या कैसे। मैं उनसे कहता था कि मैं बस आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप इतने लंबे समय से सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, आप कैसे पढ़ाते हैं, क्या चुनौतियां हैं, बच्चे कैसे समझते हैं, और आप इसमें क्या इंटरवीन करते हैं, कैसे। यह जो मेरा था सोशल साइंस टीचर्स के साथ इंटरव्यू, अगेन ये नमिता मैम की ही सलाह से जब स्काउटिंग टास्क शुरू हुआ तो इसमें वसंत वैली और आईवी करिकुलम को चलाने वाले पाथवे जैसे स्कूल के टीचर भी थे, तो दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर भी थे। हद तो यहाँ तक की थी कि जौनपुर जो मेरा होम टाउन है, वहां के गांव के स्कूलों के टीचरों को भी मैंने लिया। मतलब समझिए 15 से 20 टीचर ऐसे जो अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरीके के प्रयोग कर रहे हैं, जिनकी चिंताएं हैं, जिनकी अपनी समझ है, जो करिकुलम के साथ, जो बच्चों के साथ एक जिनका एक्चुअल एक्सपीरियंस है, वो मुझे बता रहे थे कि वो
अपनी कक्षा में क्या करते हैं, वो बच्चे कैसे सीखते हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं, सामाजिक विज्ञान क्या है उसके बारे में क्या सोचते हैं, जो नई किताबें आई हैं उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा कि जो मैंने अपना रिसर्च क्वेश्चन पहले ड्रॉ किया था सिनॉप्सिस में, वो मुझे यहाँ पर पहले ही सेट ऑफ स्काउटिंग टास्क में फेल होता नजर आया। कि मैं तो ये मान के चल रहा था रिसर्च के बेसिस पे कि मुझे टीचर्स के पेडागोजिकल नॉलेज को एक्सप्लोर करना है, और मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ एक्सप्लोर करने से, जो कि मेरा वहां पर बाद का ऑब्जेक्टिव था, लेकिन यहाँ मेरे समझ में आया कि बिना इनसे बात किए, बिना इनको समझे, मैं तो एक गलत दिशा में पूरी तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा था। इसलिए यह टास्क मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। इसके बाद आप देखिए एलसीएफ ने एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन कही है, विद्यालय के ज्ञान को विद्यालय के बाहर के ज्ञान से जोड़ना। तो इसी सिलसिले में जिन स्कूलों से मैं जिन स्कूलों के टीचरों से मिला, उन्होंने अपनी इस बातों में बार बार स्टूडेंट के बैकग्राउंड पे बहुत फोकस किया कि हमारे यहाँ के बच्चे ऐसे हैं, चाहे वो पाथवेज स्कूल रहा हो, चाहे आपके दिल्ली का कोई स्कूल रहा हो, हरिनगर का स्कूल रहा हो, चाहे जौनपुर का स्कूल रहा हो। फिर मैंने ये तय किया कि विदाउट एनी प्री कंसीव नोशन मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट के साथ बात करूंगा। अब देखिए ये जो बातचीत थी, इस बातचीत में मेरे लिए उनके साथ, अब आपको लग रहा होगा कि तो सोशल साइंस पे काम कर रहे थे, कहाँ बच्चों और पेरेंट्स से बात करने चले गए, तो ऐसा नहीं था। यहाँ वो सोशल साइंस इज लोकेटेड विद इन स्कूल कल्चर, या स्कूल से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, फॉर्मल एजुकेशन से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, उनमें जो सब्जेक्ट्स की हायरार्की है, तो इनको लेके मैंने पेरेंट्स और स्टूडेंट से भी काफी बातचीत की। इस बातचीत से ये जो दोनों काम थे, मुझे एक अनुमान लगने लगा कि भारत के स्कूलों में, अलग अलग टाइप के स्कूलों में सामाजिक विज्ञान की जो के प्रचलित अभ्यास हैं, जो उनके टीचर कर रहे हैं, जो बच्चे कर रहे हैं, वो क्या है। लेकिन अभी भी जो मेरा पहला क्वेश्चन था कि सोशल साइंस के नेचर को आप कैसे एड्रेस करेंगे। अगर देखा जाए तो मैं इन दोनों को ही डेटा में कन्वर्ट करके थीसिस लिखने के प्रोसेस में आगे बढ़ सकता था। मैं तुरंत आके जो मैंने अपने पहले रिसर्च क्वेश्चंस बनाए थे उन पे फोकस कर सकता था। लेकिन ऐसा करने के बजाय मैंने मैम की सलाह पे फिर यूनिवर्सिटी टीचर जो अलग अलग कॉलेजेस में ज्योग्राफी पढ़ाया करते थे, डी स्कूल के टीचर्स के साथ भी मिलकर मैंने बातचीत करनी शुरू की। और फिर हमने सोचा कि हम ये देखते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं, जो एक तरीके से नॉलेज कंस्ट्रक्शन, नेचर ऑफ सोशल साइंस के बारे में एक नए तरीके की बात कर रहे हैं, ये उस सब्जेक्ट को लेकर क्या सोचते हैं। उस बातचीत से जो एक महत्वपूर्ण इन्फ्रेंस मैंने ड्रॉ किया कि ये जो नेचर ऑफ सोशल साइंस वाइडर सेंस में और नेचर ऑफ ज्योग्राफी है, उसको बिना एड्रेस किए आप चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग को एड्रेस नहीं कर सकते। और ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था। अगर मैं ये टास्क ना करता तो ये कंपोनेंट मेरी रिसर्च में आने वाला नहीं था। क्यों नहीं आने वाला था? इसलिए नहीं आने वाला था क्योंकि प्रीवियस लिटरेचर, जो भी थीसिस की गई हैं, जो भी पब्लिश्ड पेपर हैं, वो जब भी चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, वो ज्यादातर पियाजेसियन फ्रेमवर्क में, वाइगॉत्स्कियन फ्रेमवर्क में, कुछ क्लिनिकल इंटरव्यू, कुछ टास्क लेकर उस पर बात करते हैं। लेकिन वो खासकर आप देखेंगे लिटरेचर में भी आप पाएंगे, वो एक डेवलपमेंटल ट्रैक ट्रेस करने की कोशिश करते हैं या क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन करते हैं कि गांव का बच्चा ऐसे समझता है, शहर का बच्चा ऐसे समझता है। और आपको एक मजेदार बात मैं यहाँ बता दूं, ये जो यूनिवर्सिटी टीचर के इंटरव्यू के पहले, ये जो पहले 2 टास्क मैंने किए थे, इसके बाद फिर वही बच्चों की तरह मैं भी नमिता को मैंने ये टास्क कर लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गांव और शहर के बच्चों के बीच में कंपैरिजन कर लेना चाहिए, ऐसे ऐसे। मैम ने पूरी बात सुनी है। आपको एक मजेदार बात बताऊं, मैम कभी भी बीच में टोकती नहीं थी। वो हमेशा पूरी बात सुनने के बाद अंत में कहती थी, उन्होंने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि अच्छा ठीक है, तुम गांव कर लोगे, शहर कर लोगे, पहाड़ कर लोगे, चलो मैदान कर लोगे, लेकिन ये क्या है, ये तो हम सभी जान रहे हैं, इसमें नया क्या है। और आप समझिए इस बात को कि जिस थियरी को लेके मैं काम कर रहा था वो 1990 में आई हुई थियरी है, ठीक है, उसके लिए मेरे पास सेट ऑफ डेटा नया होगा, लेकिन उस डेटा का एनालिसिस तो उसी वर्क पे जा रहा है। तो इसलिए थीसिस आपकी हो जाएगी, लेकिन वो आपका जेन्युइन वर्क नहीं है, आप उस डिस्कोर्स में कुछ नया कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो फिर इस डिस्कशन के बाद जब मैंने यूनिवर्सिटी टीचर्स का इंटरव्यू लिया तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे काम में एक नयापन आ गया। वो नयापन क्या था? वो नयापन ये था कि अब आप बच्चों की समझ,
कक्षा की पढ़ाई के साथ साथ विषय की प्रकृति, नेचर ऑफ द सब्जेक्ट को भी आप उसमें एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसको एंकर कर रहे हैं। दिस इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थियोरेटिकल एंकरिंग थ्रू द लेंस ऑफ नेचर ऑफ द पर्टिकुलर डिसिप्लिन। क्यों? क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइगॉत्स्कियन फ्रेमवर्क, सिचुएटेड कॉग्निशन के फ्रेमवर्क से देख रहे हैं चीजों को, तो आपके लिए बच्चा, उसका कल्चर और वो जो बातें कह रहा है, टास्क कर रहा है, वो जरूरी है। जब आप ये नेचर ऑफ डिसिप्लिन का भी कंपोनेंट डाल रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों का इंटरफेस कैसे होगा, और अंत में मेरे लिए ये इंटरफेस ही कीवर्ड बना। तो इस तरीके से ये जो स्काउटिंग टास्क मैं कर रहा था, ये जो हमारे यहाँ एक रिसर्च का कल्चर रहा है कि सबसे पहले आप रिसर्च क्वेश्चन और मेथोडोलॉजी को फ्रीज कर लीजिए, फिर सारा काम करिए, वो मेरी पिघलने लगी। न तो मेरे रिसर्च के क्वेश्चंस वैसे रह गए और ना ही मेरी मेथोडोलॉजी, काफी कुछ बदलाव होने वाला था। जब ये सारा टास्क मैंने कर लिया तो फिर मैंने क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस कुछ किए कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है और उस पढ़ाए जाने में क्या चीजें चलन में हैं, कैसे हो रहा है। इसको कार्य करने करते करते लिखा थी नेक्स्ट लाइन। तो अब मैं तुलिका दी नेक्स्ट स्लाइड कर देंगे। अब आप ये देखिए कि मैंने क्या किया, मेथोडोलॉजी को पढ़कर, मैंने पढ़ना बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक सेट ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस बनाए थे और उस रिसर्च क्वेश्चन को मैंने प्रपोज किया था कि मैं इससे रिलेटेड डेटा लूंगा और इस मेथड से लूंगा। लेकिन जब मैंने ये स्काउटिंग टास्क शुरू किया तो दैट इज, ये ऐसा ही है जैसे आप वेव देखते हैं ना, 10th की साइंस की टेक्स्ट बुक में होता है कि आप ऊपर नीचे जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वैसे कभी मैं थियरी में पूरी तरीके से हूँ, फिर पूरी तरीके से प्रैक्टिस में हूँ, फिर थियरी में हूँ, फिर प्रैक्टिस में हूँ। और अब ये थियरी प्रैक्टिस का जो इंटरफेस हो रहा है, जो मैं वास्तविकताएं क्लास की देख रहा हूँ, जो अलग अलग प्रकार की स्कूलों में देख रहा हूँ, जो अलग अलग टीचरों के अनुभव में सुन रहा हूँ, इसके अलावा जो एक सब्जेक्ट में नॉलेज कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस दिख नहीं रही है लेकिन वो उस डिसिप्लिन में मौजूद है, उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, उसने मेरे सवालों को बदल दिया, मेरे उद्देश्य को बदल दिया। कौन कौन मेरा पार्टिसिपेंट होगा, मैं डेटा कैसे कलेक्ट होगा और मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, इन सवालों को बदल दिया। अब आपको लग रहा होगा कि बदल दिया तो क्या हुआ, केवल बदला नहीं, उन्होंने ये बता भी दिया कि आप मेरे साथ रिसर्च को करेंगे कैसे। ये सबसे महत्वपूर्ण बड़ी बात थी। हम क्या करते, जैसे कई बार मैं जिस संस्था में हूं या और भी बहुत से फोरम में बार बार हम कहते हैं कि आपने कौन सा मेथड किया, आपने टूल कैसे बनाया, मतलब कई बार मैं तो परेशान हो जाता हूं इन सवालों से। क्यों? क्योंकि मेरी रिसर्च में मैंने देखा कि ये स्काउटिंग टास्क करते करते जिन लोगों के साथ मुझे रिसर्च करनी है वो तो मेरे से ज्यादा ऊंची आवाज में मुझे बता रहे हैं कि आप मेरे साथ कैसे रिसर्च कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, टीचर मुझे खुद बता रहा है स्काउटिंग टास्क में जो मैंने उसके साथ बातचीत की कि मैं अगर उनके साथ इंटरव्यू करूं, मैं उनके साथ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करूं, तो मुझे क्या उसमें थीम्स रखनी होंगे, किन बातों पर फोकस करने पड़ेंगे। बच्चों के साथ हुई बातचीत मुझे बता रही है कि अगर मैंने उनके साथ बातचीत करना है तो क्या मेरा सवाल होगा, क्या मेरी विधि होगी, किन बच्चों के साथ मैं बातचीत करूंगा। ये सारी चीजें एकदम जिसे कहते हैं छनकर बाहर आ गई। आप ये देखते होंगे, अगर मैं आपके सामने ऐसी सिचुएशन रखूं कि अगर मैंने स्काउटिंग टास्क ना किया होता तो क्या होता, अगर मैंने स्काउटिंग टास्क ना किया होता तो मैं किनके साथ डेटा कलेक्ट करूं, कौन से टीचर और कौन से बच्चे मेरे पार्टिसिपेंट होंगे और क्या मेरा टूल होगा। ये पूरी तरीके से रिसर्चर्स कम्युनिटी की एक्सरसाइज हो जाती। कैसे? मैं कुछ सवाल बनाता, पीयर ग्रुप में वैलिडेट कराता, अपने सुपरवाइजर और कुछ एक्सपर्ट के साथ वैलिडेट कराता। ये सारे काम मैं अभी भी कर रहा हूं, लेकिन इन सारे कामों को करने के लिए मुझे जो शुरुआती सूझ मिल रही है, क्लू मिल रहे हैं, वो कहां से मिल रहे हैं, वो उन्हीं से मिल रहे हैं मुझे जिनके साथ रिसर्च करनी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब मेरा फोकस ये क्लियर हुआ कि मुझे यह देखना है कि जो हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसमें मैंने एक वसंत वैली स्कूल लिया और एक गवर्नमेंट स्कूल, किस प्रकार से इन दोनों स्कूलों के सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्लासरूम प्रोसेस
नॉलेज कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस और जो टीचर्स की ओर से इंटरवेंशन है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, और इन दोनों तरह के स्कूलों में जो सोशल साइंस इमर्ज हो रहा है, जो क्लासरूम में नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसमें सोशल साइंस कहाँ है। और ये तीनों सवाल बहुत ही स्वाभाविक सवाल थे। अब जो मेरे सवाल बन रहे थे, आप विश्वास मानिए कि वो सवाल ऐसे सवाल थे जिन पर रिसर्च होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अब वे सवाल ऐसे नहीं थे जिसके लिए मैं यह कह रहा था कि यह अब तक इस पर काम नहीं हुआ है और मैं इस पर काम करूंगा। क्यों नहीं काम हुआ? क्योंकि लिखा नहीं गया है। अब मैं यह कह रहा था कि जब मैंने फील्ड में जाकर इस पर्टिकुलर थियरी के साथ, इस रिसर्च के साथ वहां के क्लासरूम को देखा, वहां के टीचरों से बात की, तो मुझे यह समझ में आया कि इस टाइप के पैटर्न मुझे दिख रहे हैं। इस टाइप के पैटर्न में सामाजिक विज्ञान की समझ क्या है, बच्चे की समझ क्या है, और क्लासरूम की प्रक्रिया क्या है। इनमें जो ये दो तरह के मुझे पैटर्न दिख रहे हैं, इसके अंदर जो ये ब्लैक बॉक्स मॉडल है, इसके अंदर क्या होता है, मैं इसे खोजना चाह रहा हूं। अभी भी थियरी मेरी मदद कर रही है, लेकिन अब उस थियरी की मदद से स्काउटिंग टास्क के साथ दोनों को मिला के अब मैं जो सवाल बना रहा हूं, वो सवाल ऐसे सवाल हैं जिन्हें एड्रेस करना ही चाहिए। जो अगर मैं कहूं वो ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, उनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने फिर ये डिसाइड किया कि इन दो अलग प्रकार के स्कूलों में मेरा डेटा कलेक्शन प्रोसेस होगा। फिर इस सेट ऑफ पार्टिसिपेंट के साथ मैंने क्या किया, पहले स्काउटिंग टास्क हो गया। स्काउटिंग टास्क के बेसिस पे मैंने अपने रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को रीफ्रेम किया और फिर इसको एक 3 फेज मॉडल में डिजाइन किया। फर्स्ट फेज में क्या था, अब वो स्लाइड नीचे मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ। फर्स्ट फेज में मैंने क्या किया, फर्स्ट फेज में बेसिकली यह था फर्स्ट फेज में क्या था, स्काउटिंग के बाद आप देखेंगे कि फर्स्ट फेज में मैंने ये देखा कि दो अलग ये जो सोशल साइंस टीचिंग के पैटर्न हैं उनमें क्या होता है। फिर सेकेंड फेज में मैंने देखा कि ये जो पर्टिकुलर एक सोशियो कल्चरल ग्रुप के बच्चे हैं उनमें एवरीडे नॉलेज कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। और एक बहुत मजेदार बात है कि एक लंबी बहस मेरे बीच और मेरे और मैम के बीच, तुलिका दिया, जो भी रवनीत भी हैं, हम लोग सब साथी, मैंने और रवनीत ने तो साथ ही इनरोल किया था रिसर्च में, लगातार हमारी बात चलती रहती थी कि ये वर्ड क्या है, एवरीडे नॉलेज, एवरीडे नॉलेज। मतलब बहुत एक लंबा समय लगा मुझे इस वर्ड को डिफाइन करने में। आपको एक दूसरा वर्ड भी कॉइन करना था। मतलब एक तो एवरीडे नॉलेज है जिसको बच्चा अपने एवरीडे एक्सपीरियंस से कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो दूसरे को आप क्या कहेंगे, एकेडमिक नॉलेज। तो उसमें कुछ सीमाएं आ रही हैं। आप प्योर नॉलेज, ज्योग्राफिकल नॉलेज, तो उसके लिए हमने फिर एक लंबे डिबेट के बाद तय किया कि हम कहेंगे एक एवरीडे नॉलेज और एक स्कूल नॉलेज। अब आप देखिए कितनी, मतलब मैं इसको मतलब सच इंसाइटफुल एक्सपीरियंस ही क्या बताऊं। एवरीडे नॉलेज वर्ड में कहां से ले आ रहा था, ये ले आ रहा था मैं वाइगॉत्स्कियन फ्रेमवर्क से, जहां से मैंने अपने काम को शुरू किया था। डे 1 से मुझे ये था कि सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में नॉलेज कंस्ट्रक्शन होता है और उसके लिए एक वर्ड ये हो गया। अब दूसरा वर्ड मैं कहां से ले आया, स्कूल नॉलेज। अब स्कूल नॉलेज की डिफिनीशन बेसिकली जो क्रिटिकल पेडागोजी के लोग थे उन लोगों ने इसको डिफाइन किया था। और वो डिफिनीशन अब देखिए थियोरेटिकली भी मैंने एक उसमें नया कंपोनेंट ऐड हो गया। अगर ये स्काउटिंग का टास्क ना रहा होता तो सिर्फ यह सब कुछ एवरीडे नॉलेज पे चल रहा होता। लेकिन जब मैंने फील्ड में एक्सपीरियंस किया तो केवल मेरा क्वेश्चन, मेरे पार्टिसिपेंट ही नहीं इवॉल्व हो रहे थे, थियरी भी बदल गई। कैसे बदल गई? जहां केवल एक थियरी, एक लाइन थियरी की चल रही थी, वहां मेरे समझ में आया कि नहीं, केवल एक चीज नहीं है, उसके बराबर में जो एक पेडागोजिकल इंटरवेंशन है, जो एक करिकुलर इंटरवेंशन है, जो टेक्स्ट बुक है, वो आपके साथ स्कूल नॉलेज के रूप में खड़ा है। तो इसलिए अब ये हो गया इंटरफेस बिटवीन स्कूल नॉलेज एंड एवरीडे नॉलेज। ये फिर मैंने फेज 2 में देखा, बच्चों से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे खूब डिटेल बातचीत हुई। और मैं एक बात बता दूं, इस पूरे डेटा कलेक्शन के प्रोसेस के दौरान मेरे ये समझ में आ रहा था कि मुझे बोलना ज्यादा नहीं है, सुनना है। अगर मैं कोई इंटरव्यू शेड्यूल लेके जाता हूं तो मेरे दिमाग में कहता है ये 10 सवाल पूरे करने हैं और इसके उत्तर मिलते मुझे भाग जाना है। नहीं, मुझे उनके साथ जब मैं एफजीडी कर रहा हूं
वो क्या बोलते हैं, कब तक बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसको सुनते रहना है। उनमें आपस में एकदम खूब हॉट डिस्कशन हो रहा है, उसको सुनते रहना है, रिकॉर्ड करते रहना है, लिखते रहना है। ऐसे ही क्लासरूम में भी देखने का कोई उतावलापन नहीं रखना है कि मुझे देख के बस भाग जाना है। जब तक पढ़ाई हो रही है, जब तक क्लासरूम की कोई एक्टिविटी हो रही है, क्लासरूम के बाहर कोई एक्टिविटी हो रही है, तब तक मुझे उनके साथ बने रहना है, जुड़े रहना है। मतलब जो एक है नहीं, एक कक्षा 6-7 में हम पढ़ते हैं जो देख कर भी नहीं देखते, तो एज ए रिसर्चर मुझे वो चीजें देखनी थी जो बहुत नंगी आंखों से नहीं दिख रही हैं, वो सारी चीजें सुननी थी जो वो मेरे बिना कहे बातें कर रहे हैं। इसके बाद जब ये फेज 1 फेज 2 हो गया, तो फिर ये फेज 3 का काम मैंने किया, जहां पर फिर मैंने एक स्कूल टीचर जो कि मेरे फेज 2 के एक स्कूल की थी, उनके साथ मिलकर ये सवाल हुआ कि हम कुछ रिसर्च, कुछ एक्टिविटी डिजाइन करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, और उनके बेसिस पे फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार सोशल साइंस बच्चे सीख रहे हैं। इस स्लाइड पे आप देखेंगे तो अगर आप ऊपर देखिए तो मैंने क्या लिखा हुआ है, कहाँ से मैंने शुरुआत की थी। जो पहला टॉपिक लिखा है वो है जब मैंने एसओपी अपना दिया था, एक्सप्लोरिंग द इंटरफेस बिटवीन एकेडमिक ज्योग्राफी, चिल्ड्रन ज्योग्राफी एंड स्कूल ज्योग्राफी। इसको आज मैं 4 साल 5 साल बाद जब नमिता मैम ने मुझसे ये प्रेजेंटेशन देने को कहा और ये मैं आपके सामने इसको लेकर उपस्थित हूँ, मैं अगर वो डॉक्यूमेंट आपको भेजूं तो आप पाएंगे वो हाईली थियोरेटिकल, फुल ऑफ जार्गन और ऑल द फैशनेबल टूल्स। मतलब उस समय तो ऐसा मैंने किया था कि कोई ऐसा वर्ड छूटा ही नहीं था जो उस समय टीचिंग टेक्नोलॉजी कोई भी ऐसा टूल नहीं छूटा था। मतलब वो ये बताता था कि कितनी कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग है, लेकिन उस कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग के बेसिस पे आप एक क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव आर्टिकल लिख सकते हैं, लेकिन एक ऑथेंटिक नोवेल कंट्रीब्यूशन वाली रिसर्च आप नहीं कर सकते हैं। अब 1 साल बाद जब मैंने दोबारा अपना प्रपोजल सबमिट किया तो मैंने उसको टाइटल दिया सोशियो कल्चरल एनालिसिस ऑफ सोशल साइंस क्लासरूम। ये देते देते लगभग 1 साल बीत चुका था और तब तक मुझे समझ में आ गया था कि जो बातें मैंने कही हैं उसमें बहुत कुछ बदलाव की जरूरत है। लेकिन ये जो मैंने टाइटल दिया था, इसके लिए मैंने वर्ड यूज किया है हिंदी में, भानुमति का कुनबा। आप लोगों ने भी सुना होगा भानुमति का कुनबा। इन द सेंस इसमें मैंने बहुत थियरी ओरिएंटेड ना होकर जो टूल ओरिएंटेड रिसर्च आर्टिकल्स है उनको लेते हुए कि अच्छा क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इस तरीके से करी जा सकती है, टीचर से इंटरव्यू ऐसे किया जा सकता है, बच्चों का इंटरव्यू ऐसे, डेटा एनालिसिस में ये टूल हम ले सकते हैं, डेटा प्रेजेंटेशन ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ये जो मैंने सिनॉप्सिस दी थी ये ऐसा था जिसमें मैंने ये देखा था कि इस काम को आसानी से हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें मेरी कोई वास्तविकता नहीं थी, मेरा कोई मौलिकता नहीं थी। इसलिए मेरी मौलिकता नहीं थी कि इसमें वो सारी बातें केवल वही थी जो ऑलरेडी मुझे कहीं से सोचने को, कहीं से पढ़ने को मिल रही थी। लेकिन जब ये स्काउटिंग के बाद फेज 1, फेज 2, फेज 3 में मैंने डेटा कलेक्ट किया, जहां मेरे एकदम वास्तविक जो ऐसे सवाल थे जिन्हें एड्रेस इंटरफेस बिटवीन देयर एवरीडे नॉलेज एंड स्कूल नॉलेज। अब ये देखिए थियोरेटिकली फील्ड वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा कलेक्शन हुआ था। दूसरा मैंने सारे टेक्निकल टर्म्स को ध्यान रखा था कि कैसे कैसे एनालिसिस होगी। लेकिन अब जब मैंने इस काम को किया तो मेरे समझ में आया कि मेरे लिए थियरी क्या है, जहां जिस समाज में, जिस सोशल साइंस क्लासरूम की मैं बात कर रहा हूं उसकी प्रैक्टिस क्या है, और उन दोनों के बीच में वे कौन से तो मैंने डेटा कलेक्ट कर पहले की स्लाइड जहां मैंने वो बिग क्वेश्चंस लिखे हैं। अब देखिए क्या होगा, जिस तरीके से फेज वाइज मैनर में जब मैंने क्या था, एक थिक डिस्क्रिप्शन 300 पेज का करीब लिखा, आज भी वो ड्राफ्ट मेरे पास पड़ा हुआ है। और मुझे लगा कि अब तो मैंने डेटा के साथ इसे डिस्कस करूंगा और ये हो जाएगा, तब तक मैं
वर्धा जा चुका था, वर्धा से छुट्टियों में लौट के आया और वो 300 पेज का पूरा मोटा सा स्पाइरल करा के मैं मैम के पास पहुंचा कि मैम अब ये काम हो गया है। और हर बार की तरह मैम ने पूरा लगभग 1-1.5 घंटे मुझे सुना, और वो मैम के हाथ में एक स्पाइरल था, एक स्पाइरल मेरे हाथ में, मैंने ये किया मैम, मैंने वो किया। और इतना करते करते कम से कम कॉफी मैम ने भी पी ली और मैंने भी पी ली। और इसके बाद मैम ने गहरी सांस लेकर 3 सवाल मेरे सामने रखे थे, और इन 3 सवालों के बाद लगभग मैं 1 साल तक परेशान रहा। और अगर ये 3 सवाल ना होते तो मुझे पीएचडी तो मिल जाती, लेकिन मैं कुछ कंट्रीब्यूट ना कर पाता, मैं कुछ सीख ना पाता। और जो मैंने डेटा, जो इतना मेहनत से डेटा ले आया था, उस डेटा का वह उपयोग में ना कर पाता जो वो मेरे से डिमांड कर रहा था। उस डेटा में बहुत कुछ था, लेकिन जो मैंने लिखा था उसमें वो बात नहीं थी। वो बिग क्वेश्चंस क्या थे कि मैम ने मुझसे ये कहा कि जो तुमने ये थिक डिस्क्रिप्शन लिखा है उसमें, और अगर कोई एक रिफ्लेक्टिव टीचर, कोई एक जो टीचर है जो बहुत मन से पढ़ाता है, उसमें क्या फर्क होगा। ये जो तुम लिख रहे हो, ये जो डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हो, ये डेटा का इंटरप्रिटेशन है, तो इसमें थियरी का रोल कहाँ है। ये तो पूरी तरीके से एक प्रैक्टिस की और डेटा है। और तुम क्या केवल एक जो प्रैक्टिस है जो क्लासरूम में वहां हो रही है जिसे हमने देखा नहीं है उसके बारे में बता रहे हो, या कुछ ऐसा बता रहे हो जिसका थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशन है। ये सवाल मैं दोस्तों सच बता रहा हूं, ये हर रिसर्चर के साथ अगर ये सवाल उठ जाए तो उसकी रिसर्च में उसको समझ में आ जाए कि उसको अपने डेटा का करना क्या है। जब हम डेटा लेकर आते हैं तो हम डेटा से ओवरफ्लेम रहते हैं कि हमने तो बहुत कुछ डेटा कलेक्ट कर लिया है, लेकिन डेटा कलेक्ट करने के बाद अगर आपसे भी यही सवाल पूछा जाए कि जो आपने ये डेटा लिया है उसमें और एक रिफ्लेक्टिव राइटिंग में फर्क क्या है, क्या आप केवल किसी एक ऐसी चीज के बारे में बता रहे हैं जिसको मैंने नहीं देखा है, या आप कुछ ऐसा बता रहे हैं जिसको बिना बताए बिना लिखे आपका काम नहीं होगा। इसके बाद वो जो 300 पेज का स्पाइरल था वो मेरे लिए पूरी तरीके से यूजलेस हो गया। मुझे दोबारा से ये सोचना पड़ा कि ये जो मैंने प्रैक्टिस देखी है, बच्चों की समझ देखी है, क्लास में शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका देखा है, टीचर के साथ मिलकर जो मैंने खुद एक्टिविटी डिजाइन की हैं और बच्चों के जो रिस्पॉन्स आए हैं, मैं उनका क्या करूं। दोबारा से फिर मैंने इसको थियरी के साथ इसका इंटरफेस करते हुए, अब ये थियरी के साथ इंटरफेस तो एक बहुत पॉपुलर शब्द है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने कैसे किया, जो दोनों मेरे कीवर्ड थे, एवरीडे नॉलेज और स्कूल नॉलेज। तो मुझे एवरीडे नॉलेज और स्कूल नॉलेज के इंटरफेस को ध्यान में रखते हुए उन सारे क्लासरूम की रिकॉर्डिंग को, सारे इंटरव्यूज को फिर से देखना पड़ा, उनमें कैटेगरी, उनमें कंपैरिजन करके इवॉल्व करना पड़ा कि आखिर वहां क्लासरूम में जो हो रहा है उसको आप कैसे, उसमें एक पैटर्न को कैसे पहचानेंगे। क्या वह केवल एक टीचर और बच्चे की कहानी एक रिसर्चर की जुबानी है, या एक ऐसे रिसर्चर की जुबानी है जो उसे थियराइज करना चाह रहा है। अगर आप उसे थियराइज करना चाह रहे हैं तो उस प्रोसेस में आपको बहुत धैर्य के साथ उसको पढ़ना पड़ेगा, पैटर्न को छांटना पड़ेगा, और डेटा को लिखना ही नहीं है, केवल उस डेटा में से देखना है कि वह डेटा थियरी के सपोर्ट में कहाँ है, उसके साथ कंट्राडिक्शन में कहाँ है, और किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। करने में मुझे फिर से 6-7 महीने लगे, और इस 6-7 महीने के बाद जब मैं दोबारा मैम के पास आया तो फिर मुझे तब मैम का जो फीडबैक था अब वो है, क्या बात निकल के आ रही है कि एक जो सोशल साइंस का डिसिप्लिन है वो जैसे इवॉल्व हुआ है, वो जिस तरीके से नॉलेज को देख रहा है, उसको टीचर जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं और बच्चा जिस तरीके से समझ रहा है, उनमें क्या आपसी रिश्ता है, क्या आपसी लेन देन हो रहा है, और इसमें बच्चे के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की यूनिकनेस क्या है, जो करिकुलर मटेरियल है उसका टीचर और जो पूरा एक फ्रेमवर्क बना हुआ है स्कूल कल्चर का उसके साथ क्या सरोकार है। इस तरीके के सवालों के जवाब तब जाके उसमें दिखने शुरू हुए, मिलने शुरू हुए, और फिर मैंने वो देखा कि किस तरीके से जो सोशल साइंस की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वह हो रही है और उसमें किस तरीके की संभावनाएं हैं। ये कार्य तब जाके हुआ। तुलिका दी 10वीं स्लाइड पे आएंगी क्या? तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान मुझे क्या लगा, बार बार एक रिसर्चर की जर्नी में लगता था कि
बस कोई ऐसी रिसर्च मिल जाए जिसको मैं कॉपी करके या जिसके इर्द गिर्द घुमा के जिसको सामने रख के हम अपनी रिसर्च डिजाइन कर लें, ये हम सबके भीतर टेम्पटेशन होता है, इससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्काउटिंग टास्क करेंगे, आप थियरी के साथ साथ अपने फील्ड को समझने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे आपका वो पूरी तरीके से सेंस खत्म हो जाएगा, आपको अपना काम अपना लगने लगेगा। आप एक चीज का और ध्यान रखें जिसे मैंने फील किया कि जब अपने काम को लिख रहे हैं, हमें दूसरे को समझाने के लिए उसको लिखना है, हमें सिर्फ उसको एक कठिन शब्दों का शब्दकोश नहीं बनाना है, ऐसा नहीं बना देना है कि हमारी थीसिस को हम समझने के लिए हमें किसी और किताब की मदद पड़े। हमारी थीसिस ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो हम कहना चाह रहे हैं, जो बात बताना चाह रहे हैं, वो आसानी से पढ़ने वाले तक पहुंच सके। और इसमें तो कई बार आप देखेंगे नम्रता मैम साथ जितनी थीसिस हुई है, हर में अलग अलग तरीके के पैटर्न मैम ने फॉलो करवाए हैं। वो पैटर्न कैसे तैयार हुए, जैसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैम ने मुझसे कहा कि तुमने जैसे काम किया है उस काम को वैसे ही लिखते जाओ। अर्थात आप उसमें ऐसा नहीं पाएंगे कि मेथोडोलॉजी का चैप्टर कोई अलग से है, नहीं, जिस तरीके से फेज 1 का काम हुआ तो फेज 1 की क्या मेथोडोलॉजी रही, क्या डेटा रहा, क्या एनालिसिस, फेज 2, फेज 3 और फिर मैंने कंक्लूड कैसे किया। कई बार रिसर्च करते वक्त अब आपके मन में लगेगा, जब आप भी 300 पेज लिख लेंगे और लगेगा कि अब काम हो सकता है और आपके सामने कुछ बड़े सवाल आएंगे और आपको लगेगा अरे अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो फिर आपको लगेगा कि बस अब नहीं होगा, किसी तरह ये जमा हो जाए। लेकिन दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऐसा बड़ा सवाल खड़ा होगा, वह केवल और केवल आपकी थीसिस की, आपके काम की क्वालिटी बढ़ाएगा। आपको धैर्य से काम लेना है और ये ढूंढना है कि आपके डेटा में कौन सी नई बात है और वो नई बात कहां से आएगी। वो जो सब कुछ थियरी आपने पढ़ी है, उसके साथ साथ जो डायरेक्ट फील्ड में आपने समय गुजारा है, जो सुना है, जो सामान्य लोग नहीं देख सकते, उसको जो देखा है, उसकी मदद से जो आप व्याख्या करेंगे, वहां से एक नई थियरी निकल के आएगी। फिर आप उसको जाहिर सी बात अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। और कुल मिला के मुझे लगता है कि आपको अपने काम को अपनाना चाहिए, उसके लिए पैशनेट होना चाहिए, लगातार उसको रिफ्लेक्ट, रीड करते रहना चाहिए और उसमें जो कुछ भी सजेशन मिले उसको लेकर इस काम को करना चाहिए। ओवरऑल मुझे ये लगता है कि कोई भी थीसिस केवल एक रिसर्चर की थीसिस नहीं होती है, रिसर्चर और गाइड की ये को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होता है, जहां गाइड भी रिसर्चर के साथ लगातार एक नई प्रॉब्लम, नए डेटा के साथ जूझ रहा होता है और बराबर वो दोनों के मन में बातें चल रही होती हैं। जैसे मैं खुद बताऊं, एवरीडे नॉलेज, स्कूल नॉलेज का हम लोगों ने डिबेट सॉल्व किया हो, या हम किस तरीके से सोशल साइंस को देखेंगे, हम बच्चों के नॉलेज को कैसे देखेंगे, क्लासरूम प्रोसेस को कैसे फर्क करेंगे, इसमें मैम और मेरा कांस्टेंट डिस्कशन होता था और हम दोनों नई नई इंसाइट के साथ आगे आया करते थे। और मैम के ही गाइडेंस में और उनके बड़े सवालों से गुजरते हुए मैंने अपनी थीसिस को पूरा किया और अंततः एक दिन ऐसा आता है कि जब आप थीसिस जमा कर देते हैं और आपको डिग्री अवार्ड हो जाती है, तो कुछ ऐसी खुशी होती है। और मैं लकी रहा कि जिस समय कन्वोकेशन हुआ मैम ही डीन थी, तो मैम थी जब मुझे डिग्री मिल रही थी। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन है। बाकी आप इस जर्नी से जुड़ा कुछ भी मेरे से पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, मैं अपनी ओर से बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। Thank you very much, Rishabh. What a beautiful presentation you gave. तुमने जो सारी जर्नी बताई, मुझे वो सारे 3-4 साल याद आ गए, रियली एक एक घटना याद आ गई। तुमने बहुत अच्छे से सारा कुछ समझाया, सारा कुछ सबका विवरण भी दिया कि किस किस दौर से तुम गुजरे। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि तुमने अपना टॉपिक लास्ट में ही बताया, क्योंकि यू केप्ट पीपल गेसिंग कि सोशल साइंस के डोमेन में रिसर्च तो किया है ऋषभ ने, लेकिन फाइनली व्हेन यू टोल्ड अस व्हाट योर ओरिजिनल टॉपिक वाज एंड वेयर यू केम, और हमको कई स्लाइड्स के थ्रू लेते गए और अपने अनुभव हमें बताते गए, बहुत कुछ आई थिंक हमको समझने को मिला। सो ट्रू टू द स्पिरिट ऑफ डूइंग रिसर्च, आपने हमें एक वाइकेरियस मेथड से एक्सपीरियंस दे दिया कि आपने रिसर्च जर्नी कैसे एक्चुअली लिव की थी, हाउ यू लिव्ड इट, हाउ यू एक्सपीरियंस्ड इट, and of course you did a beautiful piece of research subsequent to that, and I'm hoping very soon we will see it in the form of a good book. ये हमारी actually expectation है अब आपसे. That's really very good. I'm so thankful to you. It was really a pleasure listening to your eloquence, your passion, your spontaneity, and your whole captivity of how you recounted all those experiences. आई एम श्योर हमारे स्कॉलर्स के पास बहुत सारे प्रश्न हैं,
तो अब मैं खोलती हूँ स्कॉलर्स के लिए कि वो जो भी प्रश्न पूछना चाहें वो सामने आए और प्रश्न पूछें. So scholars, it's open to you now. Let me see in the chat box if there are some questions. But anybody wishing to come forward and they can unmute and ask a question. तो आपको थैंक यू सर, डॉली ने कहा है थैंक यू सर, बहुत अच्छे से समझ में आया. तुलिका मुझे कह रही है मैम प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो. तुलिका, नाउ यू कैन सी मी. कैन यू सी मी? Okay. Who is coming forward? Can I? Yes, Yes, Geeta. ma'am. Yes, Geeta, please. Yes, ma'am. हाँ, ओके, थैंक यू सो मच ऋषभ. आपने हमें फील्ड में ही उतार दिया. टू टेल यू फ्रैंकली, मुझे भी ऐसा लगा मैं भी आपके साथ जो है ना बैटल फील्ड में कूद पड़ी थी, आपके जर्नी को एक्सपीरियंस अनुभव कर पा रही थी. मुझे आपने 2-3 बातें बड़ी अच्छी कही कि आपको जो है ऑडियंस के लिए लिखना चाहिए, ना कि बड़े बड़े जार्गन्स और करके शो ऑफ करना चाहिए. आपने ये बात बड़ी अच्छी बोली. और मैंने कल इत्तेफाक से कल एक जर्नल में आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ऋषभ कुमार मिश्रा पढ़ा था. मुझे तब जानकारी नहीं थी कि वो आप है. अब जो है अब आपको हम खूब पढ़ेंगे अच्छे से. अच्छा, और स्काउटिंग टास्क का आपने इम्पोर्टेंस ये बताते हुए आपने मुझे ये रियलाइज किया कि कितनी इम्पोर्टेंट है स्काउटिंग टास्क एज अ सुपरवाइजर. ऑफ कोर्स अब रिसर्च तो मैं कर नहीं सकती अनलेस नमिता मैम मुझे हायर स्टडीज के लिए अपने अंडर ले ले. तो नहीं, बिल्कुल तो पर जो है अपने रिसर्चर्स को मैं कह सकती हूँ कि स्काउटिंग टास्क कितना इम्पोर्टेंट है ये मुझे आज महसूस हुआ. और मैं भी उसी स्कूल ऑफ थॉट से आती हूँ जहाँ आपने जैसे बताया कि फिक्स्ड मेथोडोलॉजी, फिक्स्ड क्वेश्चंस, फिक्स टूल्स, ये सब होने के बाद जो है आपका रिजल्ट आ जाता है. और हमें पूरी पीएचडी बाइंड करने के बाद, अवार्ड होने के बाद भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं फील होता है. डिग्री देखते हैं केवल, मगर हमें मजा इसलिए नहीं आता है क्योंकि वैसे तो हमें करने का बड़ा मन होता है, पर एक गाइड, अच्छा गाइड होने का क्या जरूरी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है ये मुझे अब आज रियलाइज हो रहा है आपके बातों से. तो उससे क्या होता है कि आप समझते हैं कि ठीक है इसी को फिक्स करो, आपको रिजल्ट मिल गया, फिर आपको लगता है अरे ये आंसर तो मुझे पहले से पता था, मैंने ऐसा बड़ा कौन सा तीर मार लिया. राइट. तो थ्योरी कैसे आपने डिराइव करना ये बड़े ब्यूटीफुली आपने बताया, क्योंकि मैं भी एक पेडागॉग हूँ. आपने सोशल साइंस में आपने बताया कि इस तरीके से 2 तरीके से कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, जबकि सब कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो है फेल है आज के जमाने में. आज भी हम बिहेवियरिस्ट और जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच को यूज कर रहे हैं, और क्योंकि मेमोराइजेशन मेथड है और एग्जामिनेशन सिस्टम हमारा बदला नहीं है. कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो है जहां तक हम बात करते हैं वो एक थ्योरी तक ही सीमित है, क्लासरूम में हमें दिखाई नहीं देता है. ये हमने सुपरविजन के टाइम में भी देखा, स्टूडेंट्स भी यही कहते हैं. पर आपके बातों से मुझे लगा कि हम जो है अभी भी उस कैमरा के लेंस हमारा जो है एक ही तरफ है. जैसे आपने बताया कि स्कूल नॉलेज और कैसे स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने नॉलेज, ये 2 तरीके से अगर आप उसको परसीव करो तो कंस्ट्रक्टिविज्म भी कुछ होता है, कुछ चीजें होती है. आपने ये बताई तो ये चीज मुझे समझ में आया. जहां तक ये पॉलिसीज की बात है, ये भी कहा गया है कि पॉलिसीज जो है करिकुलम और मटेरियल डेवलपमेंट, इन चीजों में जो है बहुत जो है पॉलिटिकल और पावर रूलिंग पार्टी जो है स्पेशली सोशल साइंस में जो है उसमें बहुत ज्यादा इसका प्रभाव होता है. और बेसिकली जो है अब आपके जो अब करिकुलम जो है रिवाइज होने जा रही है, इस पे आपको क्या लगता है कि कितने हद तक हम जो है टीचर्स जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी टीचर हो, चाहे वो स्कूल टीचर हो, या लर्नर्स को भी हम अगर लेते हैं. तो मुझे इस पे अगर आप कुछ रोशन डालेंगे, क्योंकि आप लिखते रहते हो और आपका जो है रिसर्च जर्नी मुझे लगता है खत्म नहीं हुआ है बल्कि शुरू हो रखा है. तो आप मुझे इस पे थोड़ा सा आप एनलाइटन कीजिए प्लीज. थैंक यू मैम आपके फीडबैक के लिए. जितना मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ, आपके सवाल का उत्तर आपके सवाल में ही है. जब करिकुलम की प्रोसेस में हम चूज करते हैं कि कौन डिसाइड करेगा कि क्या पढ़ाया जाए, तो ये बाय डिफॉल्ट आइडियोलॉजी लेडन प्रोसेस
होगी, किसको हम चुनते हैं, कौन बनाए। अगर हम चुनते वक्त ये ध्यान रख रहे हैं कि हमारी टीम में अलग अलग तरह की सोच वाले, अलग अलग तरह से पढ़ाने वाले, अलग अलग क्षेत्रों और अनुभवों वाले, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग रहें, बच्चे भी रहें, टीचर भी रहें, पेरेंट्स भी रहें, तो हम अपेक्षाकृत एक कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम फ्रेमवर्क या एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हमारे सोचने की हमारा पैटर्न ये और हम ये सोच के आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, जो मेरी तरह सोचता है केवल वही उस प्रोसेस का हिस्सा हो, तो आप एक जिस भी टेक्स्ट बुक तक पहुंचेंगे, जिस भी करिकुलम फ्रेमवर्क तक पहुंचेंगे, वो बहुत सीमित दायरे का होगा। खासकर अगर आप ये देखें, जब मैंने स्कूल नॉलेज की बात की थी और स्कूल नॉलेज से जुड़ी आप थियरी पढ़ेंगे, तो एकेडमिक डिसिप्लिन और स्कूल नॉलेज का फर्क ही यही होता है कि स्कूल नॉलेज तो पूरी तरीके से चुना हुआ ज्ञान है। अब ये डिपेंड करता है कि चुनने वाला कौन है और जो चुन रहा है वो किन बातों को ध्यान में रख के चुन रहा है। यदि आपके चुनाव के क्राइटेरिया में एक वाइडर जब से कहते हैं ज्यादातर लोगों को शामिल करने की मंशा है, तो जाहिर सी बात है कि आप जिस भी अंतिम किताब तक, अंतिम प्रारूप तक पहुंचेंगे वह कॉम्प्रिहेंसिव होगी, इंक्लूसिव होगी। और अगर आप केवल एक आइडियोलॉजी ओरिएंटेड लोगों का चुनाव करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आप केवल उसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोगों के की तरह की एक टेक्स्ट बुक बनाने में कामयाब होंगे। मुझे लगता है कि सोशल साइंस में हमें हमेशा जितने भी तरह की सोच वाले लोग हैं उनको स्पेस देना चाहिए, तभी हम एक अच्छी प्रारूप और अच्छी पुस्तक तक पहुंच सकते हैं। शायद मैं अपनी बात आप तक कम्युनिकेट कर पाया हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋषभ, थैंक यू सो मच। Yes, anybody else, any of the MPhil scholars, आप सामने आके प्रश्न पूछिए अपना अनम्यूट करके। कोई कुछ पूछना चाहेगा? ऋषभ, चैट बॉक्स में अप्रिसिएशन तो बहुत है, अब हम देखते हैं कौन सामने आके आपसे कुछ प्रश्न करते हैं। राजलक्ष्मी कुछ पूछना चाहती हो? पूजा, नारायण, सबने चैट बॉक्स में लिखा है। एनी ऑफ यू वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? ऐसा तो नहीं मेरी बात किसी के समझ में ही ना आई हो। बताइए एमफिल स्कॉलर्स, कोई कुछ पूछना चाहेगा क्या? बहुत सारे हैं यहाँ पे और सोशल साइंस के भी बहुत सारे हैं। विदुषी है, डॉली है। हाँ नारायण, बताओ नारायण। हाँ ओके सर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा सर, थैंक यू आपको। क्योंकि जो डर होता है वो तो कम हो जाता है सुन करके। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि इस तरह का जो हम रिसर्च करते हैं उसमें जब डाटा एनालिसिस करते हैं तो उस दौरान किन किन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और किस पैटर्न को लेकर के, चूँकि डिस्क्रिप्टिव को एनालिसिस को लेकर के थोड़ा सा मुझे चिंता है सर, क्योंकि मेरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है अभी मेरा एमफिल में, इसलिए सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि थोड़ा इसके बारे में अनुभव। जी देखिए, एकदम आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं तो जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी बात की, आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्या केवल आप आंखों देखी बात को लिख रहे हैं या आप जो लिख रहे हैं उसमें एक पैटर्न, एक थियरी के साथ उसका कनेक्शन, एक सेंस मेकिंग की प्रोसेस भी है। उदाहरण के लिए अगर आपने क्लासरूम में कुछ देखा है और आप उस बात को हूबहू बताने लग जाएंगे तो वो तो एक रिपोर्ट हो गई कि वहां आपने देखी गई बात को रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस रिपोर्ट को एक पर्टिकुलर थियोरेटिकल फ्रेमवर्क से एनालाइज करेंगे तो उसमें जो इंसिडेंट है उस इंसिडेंट के लिए आप कोई एक कीवर्ड यूज करेंगे, फिर उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के दूसरे इंसिडेंट, दूसरे ऑब्जर्वेशन के साथ रिलेशनशिप को देखेंगे, कंपैरिजन को करेंगे, फिर आपके समझ में आएगा कि जो हो रहा था एक्चुअली, जिस चीज को आप शब्दों में केवल बयां कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसकी व्याख्या क्या है। विवरण और व्याख्या का अंतर समझिए। आप केवल डिस्क्राइब नहीं कर देना कि वहां ये चीजें हो रही थी। आपने जो पूरी मेहनत की है, एक थियरी के सहारे इवॉल्व किया है, अपने डेटा को लिया है, उसे आपको बताना है कि आपने जो देखा उसका अर्थ क्या है। जब आपने जो देखा वह लिख दिया तो वो एनालिसिस नहीं है। आपने जो देखा उससे क्या अर्थ निकला वो बताना एनालिसिस होता है। और इसके लिए आपको पहला ड्राफ्ट लिखने के बाद देखना है कि इनमें से किन बातों को, किन अवलोकनों को, किन रेफरेंसेस को मैं एक जगह रख सकता हूं और उस एक जगह रख के उसके बेसिस पे एक मीनिंग ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये ध्यान रखिए, आपको केवल आंखों देखी नहीं कहना, उसके जो अर्थ बना है उस अर्थ को, और इस अर्थ को समझने के लिए थियरी आपकी मदद करेगी, उसकी मदद से ही आपको उसकी व्याख्या करनी है।
मैं कुछ कहना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं ऋषभ की एक सर। सुपरवाइजर थी, प्रोफेसर बवेजा भी थी, हम जॉइंट सुपरवाइजर्स थे। ऋषभ ने जब वो 300 पेज लिख के मेरे पास लाया, तो उसने यही किया था नारायण, उसने हाँ। बहुत गहरा विवरण लिखा था। उसने ऐसा लिखा था कि मैम आप थी भी नहीं उस क्लासरूम में, ये आप पढ़िए, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। और जी। उसमें स्टूडेंट्स का काम, टीचर्स का काम, दोनों का डायलॉग, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, हर कुछ था वहां पे। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बट जब मैंने बोला कि ऋषभ ये तो डेटा है, इससे निकला क्या, ऋषभ रोया नहीं बस, है ना ऋषभ, सिर्फ रोया नहीं, पर उसको बहुत झटका लगा। और उसको हाँ। लगा मैम ये तो डेटा है, ये तो मैंने विवरण लिखा है कि मैंने क्या किया और क्या पाया, लेकिन मैंने अभी इसको समझाया नहीं है, इसका विश्लेषण तो किया ही नहीं है मैंने, इसको आइडिएशन इसका नहीं किया है अभी। सो दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट। ठीक है ना, ये है बात एक्चुअली। जी जी, थैंक यू ओके, मैम। मानसी की कुछ, नारायण आपको कुछ और पूछना है या कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पर्सन? जी मैम, जी मैम। मैम किसी एक क्वेश्चन आया हुआ है भावना का कि सर ड्यूरिंग स्काउटिंग टास्क यू माइट हैव कलेक्टेड डिटेल डेटा, हाउ हैव यू एनालाइज दैट, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। हाँ, ठीक मैं है। ये बताना चाहूंगा कि स्काउटिंग टास्क जो था, बेसिकली स्काउटिंग टास्क जो मेरा एरिया ऑफ रिसर्च है, उसके जो जो भी पॉसिबल एवेन्यूज हो सकते हैं, जो जो भी पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, उनके साथ की गई हर बातचीत को, हर अवलोकन को मैंने लिखा और सबको किया अलग अलग। मान लीजिए मैं बच्चे से बात कर रहा हूं तो वहां टीचर मौजूद नहीं है, टीचर से बात कर रहा हूं तो वहां क्लासरूम नहीं है, तो मेरे पास जो बंडल आया टीचर के बातचीत का, क्लासरूम को देखने का, बच्चों से बातचीत का, अभिभावकों से बातचीत का, गांव के स्कूल का, शहर के स्कूल का, वो सब एक इंडिविजुअल अर्थ दे रहे थे कि गांव के स्कूल में सामाजिक विज्ञान कैसे पढ़ाया जाता है, लेकिन एक कलेक्टिव मीनिंग भी दे रहे थे। कलेक्टिव मीनिंग इस सेंस में दे रहे थे कि जब मैं उसको पाथवेज स्कूल, वसंत वैली स्कूल के साथ रख के देखता हूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, जब मैं उसे बच्चे की एवरीडे नॉलेज के साथ देख के रख रहा हूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है। तो स्काउटिंग टास्क में जिसे कहते हैं इट्स लाइक अलग अलग ब्रांच थी, लेकिन उस सारी ब्रांच को मुझे एक साथ बांधना भी था। तो आप शुरुआत में देखेंगे तो कि आपने अलग अलग पार्टिसिपेंट, अलग स्टेक होल्डर का डेटा लिया है, लेकिन जब उन सभी के इन्फ्लुएंसेस को आप एक साथ अपनी निगाह के सामने रखते हैं तो समझ में आता है। जैसे मान लीजिए टीचर ने कहा कि मैं बच्चे को पढ़ाते वक्त ये ध्यान में रखता हूं कि वो आगे की परीक्षाओं में उसके काम में आए, और एक टीचर कह रहा है मैं बच्चे को पढ़ाते वक्त ये ध्यान में रखता हूं कि सोशल साइंस को वो इंजॉय कर सकें। अब अगर ये टीचरों में दो पैटर्न दिख रहा है, बच्चों में मुझे ये पैटर्न दिख रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि सर मेरे भैया कहते हैं कि सोशल साइंस को पढ़ना जरूरी है, आगे तुम्हें रेलवे की परीक्षा में ये काम आएगा। और दूसरा बच्चा ये कह रहा है कि वसंत वैली जैसे स्कूल का बच्चा कह रहा है कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि प्रोजेक्ट वर्क करना होता है और मैं बहुत प्रोजेक्ट वर्क को इंजॉय करता हूँ। अब आप देखिए तो दो पैटर्न यहाँ दिखने लगा ना, कि जब टीचर ये मोटिवेट कर रहा है कि ये नॉलेज आपको आगे परीक्षा में काम आएगा और बच्चा भी उसी मोटिवेशन से आगे बढ़ रहा है, आप उसको क्लब कर दिया। जहां वो कह रहा है कि मैं बच्चा उसको आनंद ले सके इसलिए पढ़ा रहा हूं, और बच्चा भी कह रहा है मैं प्रोजेक्ट का आनंद ले रहा हूं, तो उसको क्लब कर दिया। इस तरीके से वो पैटर्न निकल के मेरे सामने आता है कि वास्तव में फील्ड में क्या हो रहा है। अदरवाइज जो थियरी वाली बात थी केवल उसी के बेसिस पे मैं डेटा कलेक्ट करता। तो इस तरीके से स्काउटिंग टास्क में आप समझिए आप बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, जहां से जो डेटा मिल रहा है उसको आप लेते हैं और उसके बेसिस पे जो आपकी थियरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको मिला के आफ्टर फाइनल अपना टूल कंस्ट्रक्ट करते हैं। Okay. Mansi, you have a question also. Mansi, please unmute and ask your question. हाँ जी मैम। हाय ऋषभ सर, आपके बारे में बहुत सुना था, आज आपकी प्रेजेंटेशन अटेंड करके समझ आया क्यों सुना था। मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। जैसे अगर हम फील्ड में जाते हैं तो वहां पे हमें पैटर्न्स या हमें बहुत सिलेक्टेड चीजें ऑब्जर्व करने को नहीं मिलती। माने अगर मैं सोशल साइंस क्लासरूम में जा रही हूँ, वहां पे मैं टीचर और स्टूडेंट का कॉन्वर्सेशन सुनूंगी तो मुझे वहां पे पावर डायनेमिक्स भी दिखेगा, मुझे वहां पे डिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस भी दिखेंगी, मुझे वहां पे अथॉरिटी भी दिखेगी। बट मैं अपना पीएचडी तो ज्योग्राफी की समझ पे करना चाह रही हूँ, तो उस पॉइंट हो सकता है मेरा फोन अभी ऑफ हो जाए, बैटरी खत्म हो रही है, तो मैं अभी लैपटॉप पे लॉगिन कर रहा हूँ, तो अगर बंद हो जाए तो परेशान मत होइएगा। हाँ, आप बताती रहिए।
मैं अभी बोलूं या मैं रुक जाऊं 1-2 मिनट के एक लिए? मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए बस। जी मैं रुक रही हूँ। और मानसी के बाद देर इज अ क्वेश्चन, डॉली ने कुछ क्वेश्चन डाला है और विदुषी ने. Then I will give both of you the forum, please, okay, to ask your questions. Dolly, followed by Vidushi. Till Rishabh joins back, when can we have the next one, students? I'm proposing, 1 minute, let me just open my diary, see the dates. Mansi, I will request you to do the next one. मैम रवनीत के बाद प्लीज। नहीं, मैं आपको कहूंगी बिकॉज आपका डेटा सेंट्रिक नहीं है फील्ड. योर्स इज अ डिसर्टेशन विदाउट कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द फील्ड. समझिए आप? So let's lead them to that also. I think that's also very important. Okay? Yeah. हाँ जी, हाँ जी. And then Ravneet का तो है ही बहुत interesting. We'll have that finally. Students, second जून ठीक रहेगा आपको? नहीं, ट्यूसडे तो मेरी एमएड की क्लास है. क्या हम मंडे को कर सकते हैं या 3rd को कर सकते हैं, वेडनेसडे? व्हाट इज बेटर स्टूडेंट्स? 3rd जून वेडनेसडे है और 1st जून मंडे है. मानसी, यू नीड टाइम टू प्रिपेयर. हाँ मैम, आप बता दीजिए, आई विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. 3rd जून ठीक रहेगा सबके लिए क्या? हाँ जी. यस मैम. स्टूडेंट्स, 3rd June is a Wednesday, 4 o'clock on 3rd June. ठीक है. So the next in the series will be 3rd June at 4 o'clock, and it will be Mansi Aneja. Okay? Yeah. Mansi Aneja's work is very interesting because there's no field. There is a field without going to the field. Mansi, they should know that as well. Okay? Yeah. हाँ जी मैम. And yours is MPhil. So very close to their heart, very close to their heart, because they are all MPhil scholars, right? ये भी बात है. हाँ. So then we would be doing that. So आप सब note कर लीजिए that on Wednesday, yeah, 3rd June, we'll have Mansi Aneja's presentation. And Geeta, you're most welcome to get in both your scholars, right? Yeah. Surely they can join. No problems at all. Rishabh is trying to log in. So, Pankaj? Pankaj, तुम्हारा connectivity issues थोड़े better हो गए हैं क्या जम्मू में? पंकज, सुनाई दे रहा है? Is Pankaj still there or has he left? 16 लोग तो है मीटिंग में. So, Pankaj, are you there? Geeta, you're saying something? Yes, yes, ma'am. Geeta, you want to say something? No, ma'am. Thank you so much. I just wanted my scholars also to join so that they have an experience, you know. Yeah, sure. Let them join. Definitely, no issues. Pankaj, मैं आपसे पूछ रही थी, आपके connectivity issues resolve हो गए क्या? Yes, ma'am. थोड़ा बहुत अभी नेट चलता है. 2G सर्विस में ही हूँ, लेकिन आप सुन पाते हैं ना? I mean, आप पूरा अटेंड कर पाए, कट नहीं रहा था बीच. ओके, चलिए. आई एम वेरी. नारायण, आप भी सब सुन सकते हैं, है ना? क्योंकि आपकी भी कुछ कनेक्टिविटी. हाँ, चलिए, बहुत अच्छा. आई एम वेरी हैप्पी. जी मैम. जी. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. ओके, चलिए, दैट्स वेरी गुड. And is Rishabh back with us? Tulika, is Rishabh back with us? No, ma'am, I don't think he's in the list. Until the time he's coming, I thought I'll just share a little bit with the scholars. Yeah. Based on Rishabh's presentation. So Rishabh बहुत passionately present करता है, तो हम लोग बहुत motivate हो जाते हैं research करने के लिए. And I'm quite tempted to join another PhD, but I check myself because एक और suicide mission पर जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है. ऐसे मत बोलना. No, but ma'am, this is exactly what I want to tell the scholars that PhD के दौरान जब आप कह रहे थे कि ऋषभ वो डेटा लेके आया और बस रोया नहीं, but मैम आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं रूम में छुप के जरूर रोया होगा. और हम एमफिल और पीएचडी में एक बार जरूर रोते हैं, एक बार क्या कई बार रोते हैं. तो आप प्लीज रोने से मत घबराएं. मैं सभी स्कॉलर्स को यही बोलूंगी कि 2-4 बार रो लेना चाहिए. एमफिल पीएचडी में रोने में कोई शर्म नहीं है. सबको पता है हम पीएचडी स्कॉलर्स हैं, हम इमोशनल हैं और हम रोते रहेंगे. But that is also part of the journey of PhD.
and it is a then very the scary peer experience. community helps you. The peer community actually helps you, na? Yes, and that's why our bond after so many years is so strong, because हम सब रो के निकले हैं. And I was sharing with Mansi today that मैं तो प्रपोजल के डिफेंस में ही रोना शुरू हो गई थी, तो उसके बाद से मैं रोती ही रही हूँ थ्रू आउट एमफिल पीएचडी. एंड अभी तक आई थिंक जब दोबारा पीएचडी थीसिस उठाते हैं तो एक दो बार तो उसको पढ़ के भी जब वो इमोशनल मोमेंट्स याद आते हैं तो अभी भी रोने का मन करता है. एंड यू विल ऑल्सो वॉन्ट टू कमिट सुसाइड. आप गिव अप सिर्फ रिसर्च पे नहीं करेंगे, आप जिंदगी पे भी गिव अप करने का मन करेगा. एंड आई थिंक मानसी रेड माई ब्लॉग टुडे एंड मैम इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट, बट somewhere I've written that during PhD you want to not just kill yourself, you also want to kill your supervisor. और जब आपको मन करे कि अपने सुपरवाइजर का खून कर देना है, उस टाइम पे आप सबमिट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. So if you come across these emotions, please be prepared for all of this. I think Ravneet also had similar emotions. So three of you who are here, my scholars, Tulika, Ravneet and Mansi, I think you all had similar experiences, right? Yeah. But then you also produced very good researches. Kyo, Ravneet? Surely, ma'am, believe Tulika again in her own style saying, I will kill myself and the supervisor. Because truly, actually, at one point of time, we all feel that. Let's kill everybody. Yes. And I may take you back to my days of PhD. I finished my PhD in 1986. आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे. तब हम लोग हाथ से लिख के चैप्टर्स अपने सुपरवाइजर को देते थे. और मेरी सुपरवाइजर, मैंने JNU से PhD किया, जाकिर हुसैन सेंटर से. मैं जब चैप्टर लेके अपने सुपरवाइजर के पास जाती थी, मैं बड़े लाइंस वाइंस खींच के फुल स्कैप शीट पे सब कुछ लिख के ले जाती थी. शी यूज्ड टू जस्ट थ्रो द शीट्स and say what rubbish, rewrite. And you know, आप झुक के वो sheets gather करते थे page numbers में, फिर उसको समेटते थे, and you were shaking all the time. तो we also had these earth shattering experiences. और हमारे टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग थी. तो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में क्या था कि अगर एक शब्द भी गलत टाइप हो गया, आपको फिर से पूरा पेज रीटाइप कराना पड़ता था. एंड आपको एक टाइपिस्ट अरेंज करना पड़ता था, बिकॉज वी डिडंट हैव इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स आवरसेल्व्स. तो यू नो, आप टाइपिस्ट के साथ बैठ के डिक्टेट करते थे. टाइपिस्ट को आधा जार्गन एजुकेशन का समझ में नहीं आता था, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स करते थे, और उसी से हम लोग भी गुजरे हैं. सो इट्स अ टफ गोइंग, इट्स अ टफ लर्निंग, चाहे आप एमफिल करें चाहे आप PhD करें, बट something keeps you going and you have to be a person of steel. I think that is very important. और तुलिका कह रही है कि कंप्यूटर भी क्रैश होगा. टाइपिस्ट का क्रैश होगा या आपका होगा, या आपका हार्ड ड्राइव में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ड डिस्क में, फिर आपको कुछ रिट्रीवल कराना पड़ता है. ये भी यूजुअल प्रॉब्लम्स है, वो क्रैश कर जाता है. और कभी कभी क्या होता है, आप इतने ड्राफ्ट्स लिखते हैं कि इंस्टेड ऑफ गिविंग योर लेटेस्ट ड्राफ्ट्स इन द फाइनल वर्जन फॉर बाइंडिंग, आप पुराना कुछ दे देते हैं. सो यू नो, इट्स ऑल्सो अबाउट द मेथड ऑफ कीपिंग योर फाइल्स, numbering them, putting dates, deleting the older files, or making files separately of older versions if you want to keep them in store. बहुत कुछ काम होता है इसमें, and you have to be very systematic in your approach. नहीं तो आपका तो you know, डेस्कटॉप में या आपका जो भर जाता है. हाँ, totally भर जाता है. Has Rishabh come back or he's not able to join? Ma'am, I'll share my experience. I remember, writing everything and not noting the review literature, the source, the reference. Reference properly. And, and this often happens. So I tell everyone, first note the reference, then you write. That's true. That's a big mess. It's tortuous otherwise. I agree with you. And ma'am, I remember, I had gone for 5 minutes break, and my typist, instead of all pot, he write all and pot. He changed the whole all pot, and after that I had a mess checking it again. I know. Really, these are real issues. These are really real issues. Shall we phone Rishabh to ask if he can come back? Ma'am, I'll call him.
Please call in, Tulika. Ma'am, I think his phone is has run out of battery. His phone is switched off. Okay, okay. So, ma'am, can you please take Mansi's question because she was asking something very relevant. Yeah. Okay, Mansi, can you pose your question again, please? हाँ जी मैम। मैम मैं ऋषभ सर से ये पूछ रही थी कि हम जब फील्ड में जाते हैं और हम कोई स्काउटिंग टास्क भी करने जाते हैं तो फील्ड इतना नीट नहीं होता है, हमें बहुत सारे प्रोसेसेस और बहुत सारे एक्टर्स और बहुत सारे डायनामिक्स दिखते हैं जिसमें हम इमर्स होते हैं। तो माय थिंग इज, माय एंजाइटी एंड माय क्वेश्चन इज हाउ डू वी रूट बैक टू the thing that we want to find out more. Say for example, if I go in a classroom, we see a lot of processes happening, discipline को लेके, school hierarchy को लेके, teacher student relation को लेके, मैंने जो learning की theories पढ़ी हैं उसको लेके, वो constantly मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो मैं रूट कैसे कर रही हूँ? से फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऋषभ का थीसिस का रिसर्च क्वेश्चन उठाए, मैं उस समय जब मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ व्हेन आई एम इमर्स्ड इन द फील्ड, हाउ डू आई रूट और हाउ डू आई क्लिंग टू व्हाट आई वांट टू सी? ओके, सो वेरी दैट गुड। इज बॉदरिंग मी। या ओके, मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। देखिए, ऋषभ ने ऑलरेडी एक प्रपोजल तो बनाया था, अपने फिजिकली भी बनाया था और उसके दिमाग में एक बात थी, ही वांटेड टू स्टडी चिल्ड्रंस कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, वो तो था ही उसका, और वो ये देखना चाह रहा था कि एक सोशल साइंस क्लासरूम में इसका क्या डायनामिक फॉर्म होता है, जहाँ पे एक टीचर होता है, जहाँ पे एक बच्चा होता है, और बच्चा भी एक परिवेश से आता है और वो अपने साथ कुछ अर्लियर फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, जिसको वो एवरीडे नॉलेज भी कह रहा था, वो लेके आता है। और एक किताब है, एक पुस्तक है, एक टेक्स्ट बुक है जिसमें स्कूल का एक्सपेक्टेशन है कि स्कूल नॉलेज क्या होना चाहिए, और एक है कि नेचर ऑफ ज्योग्राफी एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस जो हम हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं, जो एक डिसिप्लिन का जो एक फॉर्म होता है, वो भी उसके दिमाग में था। अब वो क्या देख रहा था? वो देख रहा था कि बसंत वैली स्कूल में भी ये कैसे पढ़ाया जा रहा है, और एक दिन नहीं कई दिन एक सस्टेन बेसिस पे सेकेंडरी लेवल पे कई कक्षाओं में बैठ के देख रहा है। कभी स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देख रहा है, कभी टीचर के पर्सपेक्टिव से देख रहा है, कभी देख रहा है कि टेक्स्ट बुक में ऐसे कहा है लेकिन स्टूडेंट क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। So all the unresolved questions and the confusions that he has in his mind, he sits and he gradually observes and he makes notings on all those points. फिर वो सोचता है कि अब मैंने वसंत वैली स्कूल, वो तो हाई एंड स्कूल में मैंने कर लिया, let me go and see that in a local government school, same book is followed, learners are very bright there, they don't have this kind of cultural capital or resources, वहाँ पे उनके एवरीडे नॉलेज से कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या हो रहा है। सो विद द सेम क्वेश्चंस एंड द सेम आइडियाज ही गोज टू दैट फील्ड। द पॉइंट इज, मानसी, ही इज नॉट अ ब्लैंक स्लेट। स्काउटिंग टास्क में हम ब्लैंक स्लेट की तरह नहीं जाते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा होता है, प्रीवियस रिसर्चेस पढ़े होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल नोशंस जो हम एक्चुअली फॉलो करना चाहते हैं वो भी हमें इंस्पायर करते हैं, बट जब हम फील्ड को देखते हैं तो हमें कुछ और न्यूएंसेस, जो बारीकियां होती हैं, वो भी हम पिकअप करते हैं, और फिर हम उसको लाते हैं और अपने प्रपोज्ड आइडियाज को देखते हैं, और वहाँ पे हम जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो द्वंद्व है, जो मिसमैचेस हैं, या जो मैचेस भी हैं, जो कॉन्ग्रुएंसेस भी हैं, उनको एनालाइज करके फिर हम नोट करते हैं। तो फील्ड में हम ब्लैंक होके नहीं जाते हैं। स्काउटिंग टास्क इज नॉट डन विदाउट अ फोकस और अ पर्पस। देखिए, आप लोग सब एक पायलट ट्राई आउट भी करते हैं। यूजुअली अ पायलट ट्राई आउट इज फॉर फील्ड टेस्टिंग ऑफ योर टूल्स एंड टू सी इफ योर डिजाइन इज वर्किंग, ठीक है, और वेदर यू नीड टू हैव एन इटरेटिव डिजाइन।
स्काउटिंग टास्क उससे भी बड़ा है, क्योंकि स्काउटिंग टास्क में आप अपने आइडियाज लेके जा रहे हैं और आपके जो अक्वायर्ड नॉलेज है उसको लेके जा रहे हैं, उसको फील्ड टेस्ट कर रहे हैं आप। टूल कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस तो बाद में आता है, सो फोकस उसमें भी बन जाता है। बट नवीनता बहुत आती है, दैट इज व्हाई यू मूव फ्रॉम हाईली jargonistic stuff, theoretical stuff to more stuff which is out there in reality in the field. That is the difference. Yeah. Thank you, ma'am. Vidushi, you may pose your question. I'll answer your question. Hello, good evening, ma'am. Good evening, Vidushi. Yeah. Ask me. Yeah, so ma'am, Rishabh sir mentioned at the very outset of his presentation how when he observed things in the field, they were so different from what he had already read. And he made this particular point where he was mentioning that what he was reading from what was already published was not enough, in the sense that should not determine as to what is out there and what is not out there. That's So right. I wanted to know, like when he was saying कि आपको अपने रिसर्च में एक नयापन जो एक न्यू है जो आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उसको आइडेंटिफाई करना होता है। हाँ. सो इज इट लाइक फील्ड डिपेंडेंट कि कहाँ आप वो रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि कई बार उस नएपन की डेफिनेशन में ये आ जाता है कि इस पे तो बहुत काम हो चुका है, इस पे और काम करने की जरूरत नहीं है। पर अगर वही काम किसी और फील्ड में हम अप्लाई करेंगे तो क्या पता नई फाइंडिंग्स इमर्ज होकर आए। सो माई होल क्वेश्चन वाज कि वो नया जब हम आइडेंटिफाई करते हैं या सोचते हैं कि इस फील्ड में हमें और कंट्रीब्यूट करना है, तो कई बार यही सोचकर टॉपिक्स रिजेक्ट हो जाते हैं कि इस पे ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है और कुछ सोचो। So, like, how to really identify that new and novel part of one's research? Like, is it field dependent? Is it dependent on where we are going to do that research? या हमें बस उन्हीं चीजों पे ध्यान देना चाहिए जो ट्रेंड्स में अभी नए आ गए हैं या so called unexplored हैं? But then again, it's questionable because as Rishabh sir pointed out कि हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है फील्ड में, क्या नहीं चल रहा है. We are just limiting ourselves to what is published or what is available for us to read. So, like, I hope I could make my point clear, ma'am. Yes, you could make your point clear. So, see, Vidushi, I'll answer your question in the following manner. So, Rishabh worked on social science learning, right? Now, there are many ways in which social science learning has been researched. There have been pedagogic stances, there have been learner-centric stances, there have been nature of social science kind of stances to understanding how social science teaching and learning is happening. But what Rishabh was arguing was that social science teaching and learning and the construction of knowledge in social sciences happens through the dynamic interface of all the actors in a social science classroom. And the social science classroom is not just a restricted space. You have to expand the contours of the classroom to children's background, to their everyday knowledge, to what they bring, to what they pose, to how they arrive at conclusions, etc. So the ways of knowing social science learning and the ways of researching social science learning, he has looked at very differently. As he says, he could have applied Vygotsky's theory, and he did that initially in his scouting task. एक गांव के स्कूल में वॉल्केनो से आप क्या समझते हैं और एक शहर के स्कूल में वॉल्केनो से आप क्या समझते हैं, मार्केट से आप क्या समझते हैं, रूरल इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं, वी टेक मार्केट ज्योग्राफी, उसको अलग अलग तरह के आंसर्स मिले, बट वो तो मिलते हैं बिकॉज कॉन्टेक्स्ट अलग है. एंड वाइगोत्स्की ने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आपके सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से ही आपकी मीनिंग मेकिंग प्रोसेस उभर के निकलेगी, है ना. सो देयर वाज नथिंग न्यू इन दैट. It was basically an application of Vygotsky's theory in a field. But look at how he has looked at what he did. उसने nature of social science को भी देखा है और university level में भी देखा है कि discipline के parameters और contours क्या होते हैं. उसने ये देखा है कि जो बच्चा आता है वो केवल एक social science classroom में नहीं बैठा है. He is a repository of all kinds of everyday knowledge जो social science को कंस्ट्रक्ट करने में मदद करता है. और टीचर के पास एक टेक्स्ट बुक है, लेकिन टीचर कैसे उसको ट्रांजैक्ट करता है और कैसे प्रोजेक्ट्स देता है और कैसे अपने क्लासरूम में प्रोसीड करता है, दैट होल डायनामिक इज लीडिंग टू व्हाट इज कॉल्ड द टीचिंग एंड द लर्निंग प्रोसेस, है ना.
So that is the new interface. So, you know, you can't create, I mean, it's not like Archimedes' principle or like Ohm's law or something that you're creating some new law, or that, you know, you're manufacturing an aeroplane or something. It's not about that. It's about new ways of looking at already existing systems and giving another perspective or a lens from which you need to look at the issue. Right, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. And so I don't think Rishabh will be able to join. ऐसा मुझे लग रहा है. He must be so frustrated at not being able to join, right? Ma'am, Rishabh just called. He's trying to log in. जहाँ पे charging point है वहाँ पे network नहीं है, so he's waiting that थोड़ा सा charge हो जाए तो he'll join in. Okay, but then others may also run out of battery or whatever, है ना? That is also there. So anyway, I would like to have we addressed all your questions and queries, students? जिनको जो पूछना था या शेयर करना था. डॉली, तुम भी कुछ पूछ रही थी ना? डॉली, are you there? डॉली ने चैट बॉक्स में कुछ डाला है, कुछ टूल्स का डाला है. I'll just look at her question quickly. Hello. हाँ डॉली, पूछो. Ma'am, am I audible? Yes, पूछो डॉली. हेलो मैम, मैं ये पूछ रही थी, जब हम लोग टूल बनाते हैं, जब जैसे कि पेरेंट्स से हम लोग कुछ पूछना चाहते हैं, वहाँ पे स्काउटिंग टास्क जो है वहाँ पे वो कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट मैम आई वांट टू नो. ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, जब आप स्काउटिंग टास्क करते हैं तो ऐसा तो एज आई से ब्लैंक स्लेट तो नहीं है, आपके दिमाग में है कि भाई हमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना है इस प्रोसेस में. तो कुछ आप क्वेश्चंस या कुछ थीम्स अपने दिमाग में बना के वहां ले जाते हैं. आप उनको पूछते भी हैं, ठीक है, जिस वे में भी आप पूछते हैं, आपको ये समझ में आता है कि पेरेंट्स क्या समझ पा रहे हैं और किस तरह रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं. आपको ये भी समझ में आता है कि पेरेंट्स का क्या योगदान है उस नॉलेज कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में, जब आप एक्चुअली स्काउटिंग टास्क में जाते हैं. जब आप विदाउट नोइंग योर पेरेंट कम्युनिटी, जब आप एब्स्ट्रैक्शन में पेरेंट्स के क्वेश्चंस बनाते हैं, तो आपके कुछ प्री कंसीव नोशंस होते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के पेरेंट्स कैसे होंगे, एक प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स कैसे होंगे. स्काउटिंग टास्क में, फील्ड में आपको वास्तविकता समझ में आती है, और कई बार आपके जो प्रिजम्पशंस हैं, you have to reject them and you have to question them and move ahead. समझ में आ रहा है आपको? So you get a reality check, plus you realize what parents, how they are contributing or not contributing, parents का क्या योगदान है, parents की क्या समझ है, वो सब फिर ध्यान में रखते हुए you make a more meaningful questionnaire for them or an interview schedule or whatever you want to use. ठीक है? So that is the purpose of the scouting task. It's the reality check. Okay? Yeah. It becomes like a field testing also. Yeah. Okay. So, Rishabh को तो मैं phone करके बाद में बात कर लूँगी and I'll thank him profusely. But I think it's been a very, very enriching session. And I'm also very happy that all of you posed very good questions. And I think from the questions also we learn a lot, because it helps in building perspective about research. And you would have seen today how Tulika's design and Rishabh's design are very different, and their quests are very different, and how their processes were also very different. So, you know, the field takes on new contours, it takes on new parameters in every research. The field is very unpredictable. और आपका nature basic चीज़ है कि जो ये interface है, it is not theory to field or field to theory. It is a field theory interface, which is very important. And that is what this Doing Research series is going to help you to achieve. Next time, please be very intrigued. Mansi Aneja has done research on Kashmir. She's done research on childhood in Kashmir without going to Kashmir, but also a very interesting form of doing research. और ये भी संभावनाएं होती हैं education departments में of doing research. Her MPhil thesis was appreciated greatly. She did very well in her MPhil. So, you know, keep your curiosity brewing, and we'll meet you same time at 4 o'clock on Wednesday, the 3rd of June. Tulika, will you be sending us the link, or who will send us the link? Ma'am, I'll coordinate with Mansi and do it. Okay.
So thank you very much, everybody. Geeta, you're most welcome to make your 2 scholars join. All right, no issues at all. Yeah. Okay. Bye, everybody. I'm closing the meeting. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, ma'am.